It is my privilege to welcome you to the Faculty Development Program, a joint effort between Shri Tika Kanya Mahavidyalaya Aligarh and UGC Malvi Vision Teacher Training Center, Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, New Delhi. This program serves as a platform for us to come together, exchange ideas, and enrich our teaching practices. Throughout the day, we will engage in various discussion and presentation aimed at enhancing our skill, fostering innovation in education, and promoting continuous professional development. I extend a warm welcome to all participants and express my gratitude to Professor Surendra Kaur, Acting Principal of SGTV Khalsa College, University of Delhi. Shri Hari Prakash Gupta ji, Secretary, Shri Tikaram Kanya Mahavidyalaya Aligarh. Professor Sharmila Sharma, Professor Vimal Rao, Professor Jaswinder Singh, Professor Ume Kulsum, Dr. Mamta Shrivastava, and entire organizing committee for their invaluable contribution to this event. Now I invite Dr. Mamta Shrivastava for welcome address. Thank you so much, Padmaji. I extend my heartfelt thanks to Professor Dhananjay Baburao Lokhande sir, as you have accepted our very kind offer to give your lecture on the second day of this session. Sir, again, I warmly welcome you and dear participants. Just write your questions in chat box because Sir has profound knowledge about NAC and IQAC. Today, I wanted to share that Sir has been the part of peer team in various colleges through NAC inspection. So I invited him so that not only Tikaram College, but also other colleges should get the benefit of the very, you can say, profound knowledge as well as experience of Sir. Sir, again, I warmly welcome you here in Shri Tikaram Kanya Mahavidyalaya Aligarh. Thank you. Now, Padmaji. Thank you, Mamta ji. Today, our speaker is Professor Dhananjay Baburao Lokhande, Director and Head, Department of Lifelong Learning and Extension, Savitribai Phule Pune University, Pune. Honorary Director, Board of Extramural Studies, Senior Citizen Help Club, Savitribai Phule Pune University. He is actively involved as a chairman and member in several committees in Savitribai Phule Pune University. He has served multiple committees, including UGC Expert Committee for Sikkim Municipal University, Gangtok, UGC Committee for On-Site Assessment at Calerox Teacher University, Ahmedabad, Subject Expert for Academic and Administrative Activities at Shivaji University, Kolhapur, member of the Advisory Committee for the Central Board of Worker Education, New Delhi. He has presented several papers and served as a resource person in many national and international conferences. As time is limited, I invite Sir to share his invaluable insights and knowledge with us. Over to Sir. Thank you so much. This is a uh, second lecture of mine in this FDP program. And I thank you so much for introducing me and this introductory part of this session. The thing is that today I will talk
today's my topic is that uh, student support and progression. And that day I talk on a general perspective and framework of IQSC. Actually, this is a very nice opportunity for me also to interact with you. And today I will focus on one criteria, though there is a seven criteria, but this is the student central criteria. This one is, and today I will focus only one criteria, and that is the student support and the progression. This is the criteria number five. Uh, Actually, the neck visit. This is not a fault finding visit. This is a fact finding visit. This is a fact finding visit. What we have done, what we are filled in our SSR program, and after DBB, and after that peer committee visits, and after that the result and all the other things is there. But whatever it may be in your SSR report and after your DBB, that might be very essential part of the NAC. And we are definitely aware that might this is the third day, I think so. One, two, three, four. This is the fifth day of your FDP program, and today I will talk on the criteria number five, that is student support and progression. See, seven criteria represent the core function of activities of higher education institutions. These seven criteria is a very core function in the higher education institutions. Under each criteria, few key indicators are also identified. Key indicators is also there. For example, in 5.1, 5.2, 5.3, like that only, and I will focus on that. And the criteria-based assessment forms the backbone of assessment and accreditation procedure of NAC. Criteria itself is a very, this is a very important part of the NAC and your SSR reports. After that DVB report, whatever it may be, that is very important part. In SSR report is very important. In this process, quantitative metrics is very essential because the 70% of this part on quantitative and 30% is a qualitative at the time of your team visits. And at that time you can show, you can present all the files and all the things at the time of peer team visits in qualitative. But in the quantitative metrics, you should have to very carefully build all the things because there is a as you are aware that 0 to 4 points is there, 0, 1, 2, 3, 4, and that's why the fill all the information in the details without any escaping thing, and बाकी कुछ उसमें तो रहना ही नहीं चाहिए कि हमें ये भरना चाहिए था. एक एक पॉइंट इज वेरी इसेंशियल because it affects on your overall gradation. See, now in this area, student support and progression, there are four indicators. Four indicators is there. The word first indicator is that student support is one. Another one is student progression. The third one is the student participation and activities. And the fourth one is 5.4, that is alumni engagement. These are the four indicators, K indicators we will say for that, KI. There are so many abbreviations is there. But as you are work as a NAC coordinator, IQSC coordinator, whatever it may be, committee member, whatever it may be, we are the family of NAC nowadays. That's why we must aware about that all the abbreviations. There are so many abbreviations. Sometimes peer team use that abbreviation. That time somebody will be, they don't know. For example, IIQA. And nowadays, yesterday only I got one message that nowadays there is a state level quality. This is the state level uh, quality assurance committee is there. State level is also. जैसे कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल है, जैसे कि स्टेट लेवल भी अभी तो फॉर्म हो रही है आपके यहाँ भी, आपके स्टेट में.
अभी होने वाली है, कि नहीं तो हो भी सकती है, अभी तो शुरू हो गया है कि स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस का सेल स्टेट लेवल के ऊपर यू मे कॉन्टैक्ट, यू मे गाइड from their cooperation and guidance from that committee, also state level committee. See, now I've talked like that. There are four key indicators in this criteria, and see, for this criteria, there is some points. Some points is there. As you are there are total 1,000 points is there. That in each criteria there is a different thing. But now today I will only talk on criteria number 5. See, there are four things again. University level, autonomous colleges there, undergraduate level, and postgraduate level. See, at the university structure, there is a different marks, different points. At the autonomous colleges, there is a different marks. Affiliated colleges, UG, and affiliated colleges, PG. These are the different things. But now we talk about the affiliated colleges, undergraduate colleges. Then for the first key indicator, student support. In that criteria, see, in affiliated colleges, undergraduate college, there is a 50 weightage is there, 50 marks, 50. Total marks is 140, 140 marks for criteria number 5, and that is the student support and progression. It means out of 140 total marks, 50 marks they given for the student supports. What is the student support? I will clarify again in the next part. And for the student progression, they gave 30 marks. Each and everything is our self support manual developed and published by the NAC committee. It is on the website, NAC portal. You take is print out and read all of IQC members as well as your faculty members. You should read all the things minutely, because this is very essential part of the NAC procedure. See, if from for a student support there is a 50 marks, for student progression there is a 30 marks, and again 50 marks is there, that is for student participation and activities. Again 50 marks is there. Any alumni of engagement, there is a 10 marks. It means only 140 marks is there for the affiliated colleges, undergraduate colleges. Okay. If there is a PG colleges, I am not going there only. I will focus on only undergraduate colleges, affiliated colleges. It means the first criteria was that is student support. Student support in this criteria, the highlight of this criteria of the efforts of an institution to provide necessary assistance to the students. असिस्टेंट हमको कुछ तो मदद सपोर्टिव रोल इंस्टीट्यूशन का असना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इज अ सेंट्रल पॉइंट, हमारा केंद्र बिंदु हमारा स्टूडेंट है. सी कि अभी तक आपने जैसे कि चार क्राइटेरिया देखे होंगे, और आउट ऑफ 7 criteria might be some focus on there, but each and every criteria is related to students only. That's why this part, no, not a कौन सा भी कम नहीं है और कौन सा भी ज्यादा नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन फोकस इज ऑन द स्टूडेंट. दैट्स व्हाई वी शुड वेरी मच care about that our student progression and our student supports. Just now I talk like that. The highlight of the criteria number 5 are the efforts of an institution to provide necessary assistance to the student to enable them to acquire, see, to enable them to acquire meaningful experience for learning of the campus and facilitate their holistic development and progression. That is very essential thing. It also look into students' performance and alumni profiles and the progression of the students to higher education and gainful employment. See, I will talk on that regarding the placement shell also after that. But gainful employment, then हायर एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में दिस की इंडिकेटर
all key indicators is very essential, but I am now focusing on key indicator. There are four indicators. I am focusing on only one indicator, that is the student support. And in this student support, facilitating a mechanism like guidance cell, placement cell, grievances redressal cell, and welfare measures to be support students. There are so many things we have to support as an institute to the students, and especially design inputs are provided to the needy students with learning difficulties. अगर किसी का कुछ learning level है, learning difficulties है, तो you should have to do anything regarding real classes, English speaking classes, whatever it may be. No, you may change the pedagogy of the teaching, whatever it may be, but student learning difficulties के बारे में हमने सोचना चाहिए. Progression is made relevant area. Institution has well structured organized guidance and counseling system. There should be counseling system, might be it is very essential things in the place. Student benefited through scholarship, free ships, and other means should be identified by the higher education institutions. See, now in this thing there are, see, the guidance sale, employment sale, scholarship, free ship, whatever it may be, fellowship, it is mentioned in the student support. And in this student support, we will see mm, we will see the average percentage of students benefited by scholarships and free ships provided by the government during last 5 years. And why it is very essential? Because see, in the criteria number 5, this is the uh, this criteria of I told you 140, there is a weightage is there, and for this student support, for this indicator, there are 50 marks. And how would they calculate 50 marks? That is very essential. In the 50 marks, it means we are talking about the 5.1, and in 5.1.1, average percentage of students benefited by the scholarships and free ships provided by the government ड्यूरिंग लास्ट 5 years. लास्ट 5 year में यहाँ पे खाली गवर्नमेंट के बारे में बात करिए कि एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 years. समझो कि अभी आपका 24-25 को है, 23-24 को है, but previously last 5 years we should have to maintain all records. Record is very essential. 5 साल का रिकॉर्ड तो वेरी इसेंशियल है. तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय द स्कॉलरशिप and free sheets provided by the government year wise during the last 5 years. वो तो हमें सब रिकॉर्ड भी करना है, और उनके लिए खाली रिकॉर्ड भी नहीं, तो उसके साथ यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फ्री शिप का ही एसएसआर में लेना है. इफ यू सॉ द एसएसआर while you are filling the SSR report, all the information, it should be very authentic and event based, because at the time of DVB, if there are so many things is there, then it will be problematic for the higher education institution. That's why authentic data with the evidence and with the proof and with the scan copy, we should upload all the things on our in our SSR reports, because after the DVB, if there is anything that will be that is not good for the institutions. And in this 5.1.1, that is the average percent of students benefited by the by the scholarships and free ship provided by the government during the last 5 years. यहाँ पे ये डाटा जो नेम प्लेट रहेगा, एज पर द डाटा टेम्पलेट्स, द नेम ऑफ द स्कीम्स वी शुड हैव टू मेंटेन, कौन सी स्कीम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बेनिफिटेड, कितने लोगों को फायदा हो गया. तो उसमें कैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट लेवल का भी हो सकता है. और इसमें एक है कि प्रोविजनली ओनली 5 पॉइंट्स आफ्टर, कि जैसे कि 5 years डाटा, इट शुड बी
there. That is very essential. And for this purpose कि अगर स्कॉलरशिप के बारे में, फ्रीशिप के बारे में, फेलोशिप के बारे में स्टूडेंट को एप्लीकेशन करने के समय व्हाट इज द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट को, अप्लाई कैसा करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, वो कौन सी स्कॉलरशिप है, वी शुड हैव टू पुट ऑल द स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम, स्कॉलरशिप, फेलोशिप ऑन आवर नोटिस बोर्ड ऑल्सो, वी हैव टू पुट ऑल द थिंग्स, बिकॉज अगर हमने वो लिख लिया तो स्टूडेंट को पता चलेगा यहाँ हमारे यहाँ हायर इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि एससी की रहेगी, एसटी की रहेगी, ओबीसी की रहेगा, माइनॉरिटी की रहेगी, और अगर कोई किसी के नाम पे रहेगा, देर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स इज देयर, बट वी शुड हैव टू पुट अप ऑन द थिंग इन आवर कॉलेज और आवर इंस्टीट्यूट, नोटिस बोर्ड की कौन सी स्कॉलरशिप हमारे यहाँ मिल सकती है। और उसमें एक है कि वो स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि डिसिमिनेट ऑफ द टू द स्टूडेंट, उनको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी स्कॉलरशिप हमको मिल जाएगी, कि व्हाट इज द व्हाट इज द टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप कौन सी है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। बिकॉज आप अगर उनको फॉर्म भरेगा और कुछ में उसको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, अगर बाद में स्कॉलरशिप नहीं रहेंगी, तो दैट विल बी फेल्यूर ऑफ द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द matrix, because there is a number of students is decreased. If there are students, suppose कि 100 students there, they are eligible for getting government scholarship and fellowship, it means we have to put 100 and 100 students. Number might be whatever it be number, but out of 100 students we should not mean 99 98 like that. जैसे कि मैंने अभी अच्छी बात किया है कि अगर आपको 100 स्टूडेंट आपके पास है कि दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, इसका मतलब कि 100 के 100 स्टूडेंट का ही हमने उनको ट्राई करना है कि उनको कैसे मिल जाएगी करके, वो सब हमने देखना है। और उसी टाइम हम लोग देखेंगे कितने एप्लीकेशन किए हैं, स्टूडेंट ने कितने एप्लीकेशन किए हैं, कि जैसे कि 100 लोगों ने एप्लीकेशन किया था, उनमें से 98 लोगों को मिला है। वॉट एवर इट मे बी, दैट इज द ऑथेंटिक डाटा, इट शुड बी देयर, बिकॉज गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का ऑफिस से कोई टाइम लग सकता है, देर आर सो मेनी क्वेरीज, so many problems in there, but we have to keep all the documents with us कि हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन किया था, वहां से 98 को मिला है, 2 स्टूडेंट का क्या हो गया है, उनका फॉलोअप कैसा रखा है, तो ये all the data should be with us. You may prepare separate file for this. I am talking about the government scholarship and government fellowship for the students, and we should have to keep the separate file, separate documents. It should be scanned, and we should display all the things, name of the scholarship, which scholarship is available, which scholarship is there on the letterhead of the head of the institute, and with the signature and with the seal on the notice board, क्योंकि स्टूडेंट को पता, स्टूडेंट बात कर सकेंगे बाद में जब इंटरेक्शन हो जाएगी, अगर वो बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं था ऐसा मिलता है, ऐसा होता है नहीं, तो वी शुड हैव टू कीप ऑल दिस ऑन द रिकॉर्ड ऑन द पेपर, एंड हमारे नोटिस बोर्ड के ऊपर विद द सिग्नेचर ऑफ द आवर हेड। एंड अदरवाइज हम अभी इसमें कैसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपने किसी को, जैसे कि नॉन टीचिंग के लोग ये सब ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन अपने किसी को एक स्पेशल एक ड्यूटी जो बोल के असाइन ये काम किया है स्कॉलरशिप के बारे में, के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो उनके पास तो पूरा डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन आईक्यूएसी सेल के पास ही पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमारे यहाँ रखना है, क्योंकि कहाँ पे पीयर टीम को अगर इफ दे आस्क जस्ट आई वांट टू सी द फाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कौन सा लेटर लेटर कौन सा कि सैंक्शन लेटर और उसका ईमेल, कैसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स कि बाहर अप्लाई करते हैं थ्रू आवर institute or through our proper channel, and they will get the mail and any letter or any correspondence. That time we should have to find out that student, we should have to collect that printout for that email or that letter, and we should keep as a institute with us, and in the filing system should be there, वो हमें रहना चाहिए। और स्टूडेंट के पास जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट के पास तो रहेगा ही, वैसा ही हमारे पास वो डॉक्यूमेंट,
जैसे कि अगर किसी के पास हमने वो जिम्मेदारी दी है तो उन्हीं के पास भी रहेगा और IQAC सेल के पास भी all these documents we should keep in our that respective file in number, and that should be in a year wise list of students on institution letter head duly signed by the head of the institutions वो हमारे पास रहना है और upload the list of go to website and provide link to SSR क्योंकि जो हमने किया है कि we should have to keep with us but after scanning all the things we should provide the link on SSR report और अगर SSR रिपोर्ट में जैसे कि अभी हमारा जो अभी मैडम ने इंट्रोडक्शन करके टाइम बता दिया देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स इज देयर कि सपोज कि इन योर लिंक इज नॉट ओपनिंग ऑन SSR report that time some persons are some persons are teaching from the your college website and on the college website also there you should put all the things in college website also as well as SSR report because college website is also useful in this regards not only but the first of all in your SSR report you should upload all the things list of colleges and which provided a link to in SSR and proof of funds received उनका proof जो लेटर है उनके बारे में कुछ जो करस्पॉन्डेंस है जो भी है इट शुड बी कीप विथ अस और हमें हमें तो रहना ही चाहिए और जब भी हमें ये SSR रिपोर्ट के बारे में जो एवरेज निकलता है 5 साल का एवरेज होता है तो उसके लिए मैं ये जैसा कि अभी मैंने अभी बात किया कि जो डाटा हमें SSR रिपोर्ट में देना है तो वहाँ पे कि हमें नेम ऑफ द स्कीम ये तो है डाटा रिक्वायरमेंट एज पर द डाटा टेम्पलेट इज देयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट बेनिफिटिंग nowadays suppose in your college in our institution there are 2000 students is there for example and out of them near about 900 students getting the benefits suppose 900 students getting the benefits the what is the formula for that to average the percentage year wise निकलना है तो हमें क्या करके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा है वो तो कांस्टेंट ही है तो कि सपोज कि 900 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द बेनिफिट तो 900 स्टूडेंट अपॉन total number of student into 100 and that is the average of 5 years you should calculate all the things and after that only you fill that SSR report. That is very essential thing. Suppose number of student I told you then receiving scholarship कितने है बता दिया और उसको भी ग्रेडिंग रहता है तो कहीं मैं जैसा बोला कि 0 1 2 3 4 तो अगर जिसमें कि वो ग्रेडिंग है दैट इज वेरी इसेंशियल ऑन एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन योर data that is a quantitative data and you should have to see very carefully while filling the SSR report. All the things is there. See, you should mention in the list that is the student from SC, ST, OBCs, minority, UGC fellowship might be there, Rajiv Gandhi's fellowship might be there, and that is the you should prepare the list and with the signature of seal our HOD whoever it be there our self attested document should be upload and that is the we only talk now 5.1.1 and that was the average percentage of students benefited by scholarships and free ship provided by the government during the last 5 years. There are 20 weightage is there. 20 weightage is there. Now we are shifting to another point number 5.1.2. We are here only. Now we are talking only one criteria number 5 and 5.1.2, and that is the average percentage of students benefited by scholarship, free etc., provided by in the institution or non-government agencies during last 5 years. Now, first we saw that uh, there is only government fellowship and government scholarship, but in this point, 5.1.2, this is from the provided by the institution
and non-government agencies during the last 5 years. And that is the 5.1.2. जैसे कि यहाँ पे कई जगह पे रोटरी क्लब का कुछ मिल जाता है क्या, वो हम लोग देखना चाहिए. Then sometime in CSR, some companies also providing some uh, fund or scholarship for the students. Some just like HP company, CSR company. There are CSR is there in companies. We should have to see, and in that point, we have to see total number of students benefited by the scholarship, freeship, etc. provided by the institution, non-government agencies hereby during the last year, same as government organization. And for this purpose, जैसे कि which data is required there, data file description क्या क्या चाहिए उसमें, कि upload the self purchase letter with the list of student sanctioned scholarship. जैसे कि पहली बात किया था कि वहाँ पे अपलोड वो लेटर अपने अपलोड करना है. अब वापस मैं अभी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि फाइल डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए. उसमें अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड लेटर विद द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सैंक्शन स्कॉलरशिप. अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कितने स्टूडेंट है क्या है, और दैट माइट बी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट. एंड एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय द स्कॉलरशिप एंड फ्री शिप्स provided by the government during the last 5 years. Data template is there. Same thing is here in non-government organization. तो डाटा यहाँ पे डाटा रिक्वायरमेंट रहेगा, नेम ऑफ द स्कीम विथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जैसे कि हमने कौन सी कंपनी से लिया है, कहाँ से हमें CSR से मिला है. तो जो भी डाटा हमें मिलता है, तो ऐसा कि उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें लेना है. नाउ वी आर शिफ्टिंग इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन. Our number of students benefited here also, and the formula is the same. How to calculate average is the same, and this time the file description is for non-government organizations and institutions. अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हमें भरना है वहाँ पे. That is a very essential part of that. Then another one, the number of students benefited by the scholarship and free institution, non-government agencies in the last 5 years data template here. We should have to very carefully. We have to do all the things very carefully because the metrics points depend on this information. Now we are going to shift in the 5.1.3. Uh, uh, but before that, we will see again the government scholarship and fees. Post metric and metric come means scholarship on national scholarship portal. Merit come means scholarship of student and minority communities. Central ISCTE Pragati scheme scholarship for the girls, single girl child scholarship scheme for the financial of educational children for BD workers. There are so many things is there, but we should have to make available. Then we should have to put all the documents on our uh, website and with the signature of our HOD. Now we are going to shift another point. Is the indicator, and that indicator is student support. Student support. But before that, he before, 1 minute. Before that, 5.1.3 is there. Just now we talk about the NGO, the institution scholarship receipts, and now 5.1.3, it's on capacity building for the students. We are talking about the criteria number 5, and in this criteria number 5, we are talking about 5.1.1. We talked already. 5.1.2, that is the NGO and all the things, and 5.1.3, this is regarding the capacity building and the skill enhancement institution taken by the institution, including the fellowship. Including the this is regarding the skills, capacity building and skill
enhancement activities taken by the institution. That is a soft skill. That one is a soft skill. Another one is a language and communication skill. Then a life skill. In the life skill, there is a yoga, physical fitness, health, and hygiene is there. Then ICT and computing skills is there. And for this indicator, see, for first indicator there was a 20 marks. For second indicator there was a 5 marks. NGOs and institution scholarship, government scholarship 20 marks. And now we are shifting the capacity building and the skill enhancement activity. There are 10 marks. And in this key indicators, the soft skill, language and communication skill, life skill, and ICT and oblique computing skill. यहाँ पे तो हमें वहाँ पे ऑप्शन है कि ABCDE ऑप्शन है इन if you saw your SSR report. तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज, लाइफ स्किल एंड ICT. if we all of the above ऑप्शन, अगर अपने ए ऑप्शन दिया तो ऑल ऑफ अबव 4 ऑप्शन है, तो एज पर द योर मेट्रिक विल बी इंक्रीज. अगर आपने बी दिया तो 3 ऑफ अबव, 2 ऑफ अबव, 1 ऑफ अबव, नन ऑफ अबव. तो नन ऑफ अबव तो जरूर रहेगा. अगर अपने 1 2 3 4 जो भी है, तो अकॉर्डिंग टू मेट्रिक ये 0.1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू. आपने अगर 4 भी किए हैं, 4 ही अपना जो स्किल है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो वहाँ पे एज पर योर प्रोग्राम्स एंड एज पर योर ऑथेंटिसिटी एंड एज पर योर इवेंट एंड एज पर योर एज यू put on your website with the event evidence, with the scan copies of the things, it will be increase your metric points and all the things. And for this purpose you कि कौन सा ऑप्शन करना है, तो इसके लिए हम आपके पास कि वो तो प्रोग्राम और उसका सब जैसे कि जियो टैग फोटोग्राफ, दैट इज वेरी इसेंशियल. जैसे गूगल में रहते कि कितने बजे निकाला है, कहाँ पे निकाला है, टाइमिंग रहता है, उनका लोकेशन रहता है, कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कि जैसे कि सॉफ्ट स्किल में रहने, सॉफ्ट स्किल है, तो उनमें उनके लिए क्या करना चाहिए, उसमें जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग रहेगा, फोटोग्राफी रहेगा. तो अगर ऐसे कुछ भी सॉफ्ट स्किल रहेंगे तो उनका भी ईयर वाइज फाइल्स हमने करनी है. और our students list with their signature if they attended any program, suppose the English speaking course, but that date, that is the timing, who is the resource person, number of student participants with their signatures, and it should be attested by the your HOD, उनका सिग्नेचर, उनका सील, ये सब लगा के हम लोगों ने एसएसआर रिपोर्ट में लगाना है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल. तो उनके लिए जैसे कि मैंने पढ़ लिया कि अभी 1 2 3 ABCDE की all of above, 3 of all above, 2 of the above, 1 of the above. As per that, how you feel, if you feel the 3, according to that, that metric point will be there. Then जैसे कि हमारा जो लाइफ स्किल में है योगा के बारे में, तो ओनली सेलिब्रेशन ऑफ द योगा डे, दिस इज नॉट including, it should be there, but sometime ki 30 hours, 2 weeks, 15 weeks, 1 week, whatever will be that course is there, that will be definitely useful short term. And how many hours you have taken all these courses, might be English speaking, yoga speaking, whatever it may be. But that time you should have to keep your जो photographs, and that photograph हमने हमारे एसएसआर रिपोर्ट में अपलोड करनी है, वो सब रिपोर्ट. and व्यू, जैसे कि वहाँ पे व्यू लिंक जो आएंगी, तो व्यू लिंक में क्लिक करने के बाद हमें वो सब वहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि जो while visiting peer team to our institution, they have to see your SSR report कि वहाँ पे क्या हुआ है, and they are only focusing on qualitative, but then also some quantitative DVV के लिए हमें जो करना है, तो उसके लिए कि वी डॉक्यूमेंट जो भी है, वेरी केयरफुली वी हैव टू फिल ऑल दिस डॉक्यूमेंट. एंड द थिंग, एंड देयर इज the data template is there on SSR. You should upload some supportive document. You may put certificate if you give them certificate, any certificate of appreciation or whatever it may be.
you may put that soft copy of the certificate on your website as a document. And now in this point only, key capacity building and skill enhancement indication taken by the institution, including soft skill. In the soft skill, there are so many things is there. Problem solving, teamwork, intrapersonal and interpersonal skills, decision making, leadership skill. That is the soft skill. Some seminar, conference, talks, whatever it may be, for that development of the students' soft skills. Another one is language and communication skills. In language and communication skills also, English, basically just I will talk about the English spoken course, prepare for the um, any competitive exam, whatever it may be, for the interview, then English language training is very essential. एंड दैट इज कुछ अगर कुछ अपने रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया होगा तो उनका भी ड्यूरेशन प्लेस डेट रिसोर्स पर्सन attendance and with the signature of the students कि how many students participated in this program, then communication it may be including all the things कि जैसे कि communication foreign language के बारे में आपने कुछ कोर्स लिया है तो it should be include over there what is the importance of that course, why we implemented this course, what is the scope for that course. We should have to uh, put on this or website. Then language lab, if there is language lab training is there, if you, that is the innovative thing. But is it is there, then you should have for that infrastructure and all the thing is there. Then other language training. Suppose कि अगर कौन सी how to communicate, how to pronunciation, then proofreading, whatever it may be. It depends on your institution and your college. That is the language and communication skill. In the life skill, just I talked discuss here now. In life skills, yoga, physical fitness, health and hygiene, but that should be regular basis, not only event based. 1 day, 2 day, not like that. But a yoga session, क्लासेस क्या हो उसका कितने 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 हो गए, फिजिकल फिटनेस के कोचिंग कैंप कहाँ पे हुए हैं, हेल्थ क्लब जिम के बारे में आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है, देन हाइजीन ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या होता है, ये सब हमने देखना है लाइफ स्किल में, योगा, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और हाइजीन के बारे में। जैसे कि अभी आईसीटी के बारे में और कंप्यूटिंग स्किल के बारे में कि जैसे भी नाउ डे देयर आर सो टेक्नोलॉजीज ग्रोइंग एवरी डे, नया नया टेक्निक, नए नए चीजें अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में आ रही है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी अवेयरनेस सेशन कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी इज essential for nowadays as a student, what can we do for the this technology nowadays in the corona period we saw there are online lectures, hybrid blended lectures, so many things was there, but sometimes some students from the villages they are not aware about that, they missed all the lectures due to like electricity to electronic internet, so many things is there. But in our college, if you aware the students like the technology awareness sessions, but that time we should have our teachers should be know what the technology is there, which app is very suitable, which is very comfortable for the student and for himself also. We have to see all the things in ICT computing training. This is a skill. Then any specialization that is it a training session. Our training on cyber security. See, in some colleges there is some credit course for the cyber security also. We should have to aware about that. There is so many mischief in the cyber security and social media. We should have to, while we are talking about the uh, student support, there are four sub point that was the skill, soft skill, language and communication skill, life skills, and ICT. These four points is there, and in these things also we should have to mention the program and schemes, what was the program, what is the scheme, we should mention all the things, then name of the contact detail of the person and agency, हमने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, पर्सन के साथ है कोलैबोरेशन, एक एनजीओ है, कोई इंस्टीट्यूट है, इट शुड बी मेंशन ऑल द थिंग्स, then that circulars for the students and for the faculty we should have to keep there, and we should have to put all the necessary report, because
that circulars, and that itself your event and dates and your geo photographs. I just talk with you because that is the very essential part to show and to produce with the peer team in front of peer team. Then then number of students enroll for the each program. कितने प्रोग्राम बच्चे ने यहाँ पे एनरोल हो गए, देन उनका अटेंडेंस शीट, उनकी सिग्नेचर, अटेंडेंस के ऊपर स्टूडेंट का सिग्नेचर। सपोज कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तारीख को प्रोग्राम लिया है, तो एवरी डेट का उनका अटेंडेंस, उनके नाम पे अटेंडेंस होना चाहिए। तो अटेंडेंस उनका हमने वी हैव टू कीप ऑल दिस थिंग विद द सिग्नेचर बाय द स्टूडेंट, सिग्नेचर का स्टूडेंट का उसके ऊपर होना चाहिए। और एक बात है कि अगर जैसे कि हमने सर्टिफिकेट दिया है तो उनका भी कुछ कॉपी हम लोग हमारे एसएसआर रिपोर्ट में स्कैन करके लगा सकते हैं। सेपरेट फाइल वी शुड हैव टू मेंटेन फॉर द सेपरेट प्रोग्राम के लिए, नहीं तो एक प्रोग्राम का फाइल पेपर वो फाइल में जाएगा, तो दैट टाइम in front of that your team it will very uh, challenging thing to find out the document. But if you uh, classified all the things very nicely, it will be without tension and very happily you will face the peer team committee there. Because if filing is there, but you do very systematically, if you do very systematically, there is no problem at all, and this is the yeah, enjoyment for the institution also, and as well as that institution also, and for peer team also very happy if you show all the documents very happily. This is there, this is here, this is here, this is the scan copy, this is the geo photograph, this is the attendance, whatever it may be. That is very simple thing. This is there is no need to take attention, as I mentioned in the in my lecture while I was starting. This is not fault finding. This is only fact finding. Fact क्या है वो बताने का है। इसमें fault की जरूरत नहीं है, because this is the uh, inspection is quite different, but this is for the development and accreditation and assessment. This is the higher education institution to development of the education institution. NAC is for that only, and we have to. They are giving to support you. There is no problem as such. There is no inspection as such. But how to improve the quality of the teaching, learning, and teaching extension research, whatever it may be, that is a very essential part of this. Then another thing is that while we are talking about the student support, we should have to take a feedback of the event. स्टूडेंट को वो इवेंट कैसा लगा, फीडबैक, एंड इट शुड बी इन रिटर्न, क्योंकि कि हमें अच्छा लगा, ठीक है, ओके, वॉट एवर इट मे बी, विद द सिग्नेचर, विद द डेट of the student, उसका year, roll number, whatever it may be, that you should have to prepare feedback sheet, and you should have upload on the SSR report where it possible, that link you may create, and you should upload that feedback sheet. That is the very simple thing actually, but that is very important thing. You upload the program details and photographs on your website, because SSR will at that time of the complete करना है, तो उसके लिए शुड मैं और वो हमारा जो डीवीबी के टाइम इट शुड बी मैच। ऐसा लगता है कि एसएसआर रिपोर्ट करते समय हमें बोलेंगे कि चलो इंस्टेड ऑफ 4 एक्टिविटीज वी विल मेंशन 6 एक्टिविटी, but while DVV at the time of डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, कि अगर उनको लगा कि इसमें जो 6 लिखा है और इसमें 4 का 4 दिख रही है हमें, तो 2 का क्या हो गया, तो अगेन दे विल आस्क टू यू वेयर इज अनदर 2, दैट इज द not a good sign. But whatever it is in your hand, it should be, you may write only that the thing that is a very good thing. And while we are talking about the 5.1.4, and that is we are now shifting to 5.1.3. That is what that was for capacity building and skill enhancement, and now we are shifting to 5.1.4, and that is average percentage of students benefited by guidance for competitive examination
and career counseling offered by the institution during the last 5 years. See, again I am going back. 5.1.1, it was average percent of student government scholarship. 5.1.2, it was institution and non-government. 5.1.3, this is regarding the capacity building. And now we are talking about the average percentage of students benefited by guiding and competitive examination and career counseling offered by the institution during last 5 years. And the weightage for this, there is a 10 weightage is 10 points is there. For this point, 5.1.4, the weightage is for this point, there is a 10 points. See, in number of students benefited by guidance, and competitive examination and career counseling offered by the institution year-wise during last 5 years. सी अगर आपका 2 साल के बाद होने वाली है आपका नेक फर्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल, व्हाट एवर इट मे बी, तो उसी टाइम वी शुड हैव टू सी केयरफुली दैट SSR report. And according to SSR report, because that is the development of the student and development of the institution, according to that, we should have to organize, and we should have to keep all the records and all the evidence and all the circulars, all the paper, all the photos according to that in our website, in our files also, hard copy also. Because see, sometime if there might be some problem, light problem might be there, internet problem might be there, if there is a so many problems there, Wi-Fi problem is there, that time your hard copy will be held for the peer team and as well as college or institute also. That's why you should keep all hard copies also with you, not only one copy, but you can may you prepare more than one Kindly file. mute yourself. You may keep 2-3 files. One file is सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक हेलो। यू। हाँ, यस, नाउ यू आर क्लियरली ऑडिबल। जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा था कि हमारे पास एक ही फाइल नहीं रहना चाहिए, और हमने खाली SSR पे दिया है, ऑनलाइन है, इसके सब स्कैन किया है, ऐसा, क्योंकि दैट इज द एक्सपीरियंस कि यू शुड हैव टू कीप 2-3 फाइल्स. One file might be with the principal or director, one file in IQH office, and one file is within respective person. जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में है, सॉफ्ट स्किल के बारे में रहने दो, अगर कौन सा भी जो जैसे कि पेपर का कटिंग रहने दो, whatever it may be, there should be more file is there, that hard copy will be helpful to you as well as that NAC team also. Now we are talking about the point 5.1.4, that is the average percent of students benefit of guidance and competitive examination and career counseling offered by the institution. And in this point, the number of students benefited by guidance, comparative examination and career counseling offered by the institution, and that is year-wise. See, this is very essential thing. In this point, we have to mention वहाँ पे कहाँ कितने उसमें पार्टिसिपेट हो गए, एनरोल हो गए. वी शुड हैव टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स विथ अस, कि जैसे कि मैंने बोला कि बैंकिंग का एग्जाम रहने दो, यूपीएससी का, एमपीएससी का, देन आपका नेट का रहने दो, सेट का रहने दो, ये नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि उसके बारे में हमने वो स्कीम लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट सपोर्ट एंड एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट benefited by the guidance of the competitive examination and career counseling. That is also career counseling offered by the institution during the last 5 years. Then coaching and
competitive classes, competitive examination, and career counseling activities should be there. And we have to prepare um, one window for the student. That is the competitive exams center, counseling center, career guidance center, whatever it means. Somebody should be coordinator for that. And he also responsible to keep all the documents with him, and he has to organize the program, and he has to keep the all records and all the things. That is very essential part, because जैसे मैंने कि शॉर्ट सर्विस स्कीम का कुछ रहेगा, एग्जामिनेशन, नेट सेट का मैंने बात किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेंटेन द अटेंडेंस। हमारे हमें तो अटेंडेंस तो हर टाइम स्टूडेंट का रखना है, एंड विद द सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, डेट, एंड जो फोटोग्राफ्स, ये तो हमें रखना ही है, क्योंकि कभी प्रोग्राम लिया है जो फोटोग्राफी तो उसमें तो आता है, वो भी हमें ईयर वाइज करना है। और यहाँ पे भी ऐसा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो दैट बेनिफिट इनरोल कितने हैं, दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कितने लोगों ने इसका एक कोर्स कंप्लीट किया। और उसको अगर आपने कुछ लेटर दिया होगा, कुछ एप्लीकेशन दिया होगा, इट शुड बी कीप विथ यू एज वेल एज on your SSR report, because this is also quantitative metrics. It is very, we have to do very carefully all these quantitative metrics, because we should have to keep all that evidence with you, and then at that time additional information हमें जो रखना है, इसमें कॉपीज ऑफ सर्कुलर, जो सर्कुलर निकाला था कि चलो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, दिस पर्सन इज coordinator, the venue of that, the date of this, timing is that, resource person is so and so. We should have to keep all the circular, that program, that brochure, details resource person, that there you should have to maintain the reports and geotag photograph, all things is there for स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में जो हम लोग करते हैं, तो वो हमें रखना है। मतलब इसमें जो जैसे कि अटेंडेंस, अगर मैं आपको लगता होगा कि I am talking the same thing again and again, but that is very essential. Without attendance, how can you prove the participation of the students? That's why with the student signature, only not absent, present, A and K, not like that, but with the student signature of the students, and year-wise list. We have to students list duly signed by the head of the institution कि हमें year-wise ये सब करना है, जैसे कि 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, whatever it may be. You have to maintain all the documents, all the filing. That system we should have to keep there, and that is really must. This is a must. We have to keep that. And again, the feedback from the student. That is very essential part. कि उनको वो प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और क्या करना चाहिए था, व्हाट इज देयर सजेशन, व्हाट एवर इट मे बी। देन अगर हमने ऐसा प्रोग्राम होते हैं हमारे सारे बहुत सारे जगह पे, लेकिन अब उनका हम लोग कुछ पब्लिसिटी किया है, कहाँ पे क्लिप है, कहाँ पे न्यूज है, कि तो उनका जो पेपर कटिंग रहेगा, दैट इज द हार्ड कॉपी। समटाइम एक लोकल चैनल रहेगा, तो उनका कुछ क्लिप है, तो वॉट एवर इट मे बी, यू शुड हैव टू कीप रेडी, and you should have to put all things on your SSR, because that will be useful to increase your metrics points. And it is, though this is very small thing is there, but it will definitely, if you go expected A grade, this small point will be add plus there also. That's why you have to keep all this record with you, and program details, photographs, and upload of the website. देन एक बात उसमें है, जैसे कि हमने कि जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात किया, प्रोग्राम क्या क्या लिया, ये बात किया, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी कैंडिडेट, से द स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर द that competition, that program, though that is not very important, only the enrollment, because the qualified hona hai nahi hona, that depend on that students, but the enrollment is, and how many students appear, how many students benefit, that is very essential part. Because if out of 70 students if appear for one program, and if they
got out of 70, out of 70 participate, they are not qualified. But then also we should have to keep that record, because they appear that is very and enroll that student, that is very important, because how many students enroll it, that is the thing, and it should be with you with the student signature. Because just I talk with you, your photograph should be there in SSR report. Separate data sheet is there year wise, and how many students attended. All the thing is there. While you are opening that SSR report, while filling your data, that is the thing. And average will be 5 साल का जो है, जैसा 20, 21, 22, 23 का, तो एवरेज बराबर उनके अपने आप वहाँ पे that will be automatically calculated. Now we talk about the 5.1.4. बराबर ना, 5.1.4 we talk just now. Yeah, 5.1.4 we talked just now, and now we will shift to 5.1.5. That is the institutional transparent mechanism timely redress. Now we are shifting there. Okay, but again I'm shifting again 5.1.4, because what type of data we require, कि फाइल डिस्क्रिप्शन कौन सा होने चाहिए उसमें 5.1.4 में, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 5.1.5 में. तो वहां पे जैसे कि एवरेज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, द सेम फॉर्मूला इज देयर. परसेंटेज कैसा निकलना है, द सेम फॉर्मूला इज देयर, कि I explained already all the things, but उसमें any additional information है तो you may put on your website number of students benefited by the guidance of the competitive examination and career counseling during the last 5 years, and that is the data, that document is very essential and very important part of that. Now we are shifting to point number 5.1.5, and that is the institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances, including sexual harassment and ragging cases. See, the weightage for this key indicators is 5, and that is the institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances, including sexual harassment and ragging cases. 5 points यहाँ पे, यार यहाँ पे दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है. क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है, इसलिए आपको और भी केयरफुली करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, एट द टाइम ऑफ visiting of the peer team, they will see, you may show all the documents, all the files over there, but in quantitative matrix you may very care, you should very carefully you mention all the things. See, there are 4 things there. The first thing is that in 5.1.5 the weightage is 5 for this point, and the first thing is that there the implementation of guidelines of statutory and regulatory bodies. There, that might be. See, again, we are talking about the mechanism for what? Sexual harassment, student grievances, ragging, what, that is a 5.1.5. And in this point, first point is that the implementation of guidelines of स्टूडेंट स्टेटूटरी रेगुलेटरी बॉडी. तो उसमें कैसा है कि यूजीसी का कुछ गाइडलाइंस रहेगा, यूनिवर्सिटी का कुछ गाइडलाइन रहेगा, फ्रॉम योर मैनेजमेंट का कुछ गाइडलाइन रहेगा. यू शुड हैव टू सी ऑल दैट, एंड वी हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइन ओनली while implementation of that this sale or redressal sale or harassment cases. There should be the see, the first point was that the implementation of guidelines of statutory and regulatory bodies. Second one, organizational wide awareness and undertaking on policies with zero tolerance. Third one, mechanism for submission of online and offline students' grievances and a timely redressal of grievances through appropriate committees. अभी ये 4 पॉइंट मैंने पढ़ लिया है. इसमें उसके लिए ऑप्शन है 1 ABCD and E. अगेन आपने ये अभी जो 4 पॉइंट पढ़े हैं मैंने पढ़ लिया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ. लेकिन जो 4 पॉइंट पढ़े हैं इसमें अगर ये 4 ही पॉइंट के बारे में आपने कुछ प्रोग्राम किया है तो ऑल ऑफ द अबव हमने लिखना है. अगर 3 किया है तो एनी
3 ऑफ अबव ABCD उनको देना है। अगर कुछ किया नहीं तो ये लिखना है, तो 0 ही मैट्रिक मिलने वाला है। नन ऑफ दीज रहेगा तो ये 4 ही मैट्रिक जो है, जो पॉइंट है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है और हमें क्या आगे करना है, हमें देखना है। कि जैसे कि ये कैसा है कि बेस्ड ऑन रिड्रेसल का है, कि इनका ये तो टाइम लाइन का है। और इसमें कि हमें हमारा कैंपस में ये सब लिखना है, कि जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में करना है, रैगिंग के बारे में कुछ लिखना है, देन स्टूडेंट ग्रीवेंसेस है। और ग्रीवेंस कुछ भी हो सकती है, कि बड़ी ग्रीवेंस होना चाहिए ऐसा नहीं है। कि जैसे कि दो स्टूडेंट में कुछ झगड़ा होता है, दैट इज ऑल्सो ग्रीवेंस, एंड वी शुड हैव टू टेक ऑल द कंप्लेंट एंड ऑल द थिंग्स इन रिटर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो हमें लेना है, क्योंकि हमें वो हमारे साथ रखना है। ग्रीवेंस से बड़ा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। वॉट एवर इट मे बी, कि इट शुड बी इफ यू जैसे कि आपने एक ऐसा कुछ इस्टेब्लिश किया कि स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, रैगिंग का सेल, देन सेक्सुअल हरासमेंट सेल है। सी देयर आर UGC गाइडलाइंस इज देयर, कि क्या वो उसका फॉर्मेशन कैसा है, क्या करना है, क्या करना है, what is the function of that committee. We should have to follow all the things, and according to that we have to put on flags or board or anything else on our campus everywhere, in your building, in some entrance point of you, where in the library, in the common room, or in the student room, whatever it may be, in the gym khana, we have to keep all the things over there, because student have to know all the things. See, there is we are giving some numbers also, phone numbers, contact here. Some person directly calling from that visit at the time of visit, and they asking, what is this? This is this one sale is there. Then if there is a answer, it means very minutely and very carefully we have to do all the things. Only mention the numbers and only the do things, only the put the flags and all the board, but you should have to authenticity over there. क्योंकि जैसे किसी ने फोन लगाया, समझे कि पेयर कमेटी में कोई है, अगर उसने फोन किया और फोन अगर लगता ही नहीं, 10 बार हुआ, 5 टाइम हुआ, तो देर इज नो बिजनेस व्हाई दे पुट दैट नंबर, बिकॉज उनको भी वो नंबर से स्टूडेंट बात करेगा, पेरेंट्स बात करेगा, कोई कॉमन पर्सन बात करेगा, तो उसके ऊपर वो फोन होना चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या है, तो उनको क्या करना चाहिए कि कई टाइप जगह पे हम लोग कुछ बॉक्सेस रख सकते हैं क्या, तो और बॉक्सेस में अगर कुछ हमको मिलता है क्या, वो ऑल द थिंग्स, और वो ये सब जो बात है कि हमारी वेबसाइट में भी रखना है, not only in the campus but on the website also, because sometimes students are checking all the things, sometimes parents are checking all the things. So what is the mechanism for that, कि हमने करना है, और ये करते समय दैट इज ओनली रिगार्डिंग द ग्रीवेंस, बट कि जैसे कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं क्या हम लोग ग्रीवेंस के बारे में, रैंकिंग, एंटी रैंकिंग, रैगिंग के बारे में, तो हम क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। बट द प्रोसीजर इज सेम, how many hours, how many days, what was the program, what was the resource person, tag photograph, then signature of the students, attendance, enrollment, whatever it may be, and then their policies, whatever it may be, we should have to keep all the record there. That mechanism, कैसा है कि ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, we should have to student grievances. It should be very clear and transparent. यानी हमें एक जैसे कि तो किसी का कंप्लीट आने के बाद उनको कुछ टाइम लिमिट है क्या, वो तो होनी ही चाहिए, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, वॉट एवर इट मे बी, बिकॉज लिटरेशियल रिपोर्ट वो भी हमें तैयार करना है कि उनका क्या हो गया, रिसील देने के बाद उसका क्या क्या हो गया, उसको टाइम लाइन है, हाउ मेनी डेज उनके लिए लगते हैं। वी हैव टू कीप ऑल द थिंग्स देयर, एंड स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी शुड बी देयर। तो अगर रहेंगी तो वो तो होनी ही चाहिए। एंड एनी ग्रीवेंसेस नो मैटर कि तो उनका ग्रीवेंस हम लोगों ने जैसे कि क्लैरिफिकेशन उसमें जैसे कि वो समाधान कारक होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी उनका होना चाहिए। एंड हाउ मेनी ग्रीवेंसेस रिसीव्ड इन लास्ट 5 years, ईयर वाइज वी शुड कीप। कैसा होता है कि एक साल में एक ही ग्रीवेंस नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी का सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी का बोनाफाइड नहीं मिल सकता, किसी का आई कार्ड 10 दिन में नहीं मिल सकता, किसी का बहुत तो 10 कितना भी दिन रहेगा उतना पीरियड में नहीं मिल सकता, किसी का पेपर है, किसी का रीचेकिंग है, किसी का एब्सेंटी आ गया, देर आर सो प्लेंटी ऑफ ग्रीवेंसेस देयर,
but it should be mentioned in your that grievance, because नहीं तो 5 साल में हमारा एक भी ग्रीवेंस नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं, इसके लिए ग्रीवेंस होना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नो ग्रीवेंस, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है हमारे पास तो हमने करना है। और जैसे कि मैंने बात किया था कि डिस्प्ले करना है हमारे कैंपस में, नोटिस बोर्ड लगाना है, गाइडलाइन लगाना है, कॉन्टैक्ट नंबर लगाने हैं, और जो भी है वो सब हमें करना है। और कभी कभी जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोग्राम करना है तो हमें अगर एंटी रैगिंग के बारे में करने हैं, अगर कुछ अवेयरनेस के बारे में करना है, ट्रैफिक के बारे में करना है, तो हम लोग को जैसे पुलिस लोगों को भी बुला सकते हैं कि कौन सा नंबर पे अगर फोन करोगे क्या हो सकता है, पुलिस आपको कैसी कैसी मदद कर सकती है, ट्रैफिक में क्या क्या करना चाहिए, जो भी है ग्रीवेंस रहने दो, पुलिस का वो मदद रहने दो। अगर जैसे कि रिस्पेक्टिव, जैसे कि वो वुमेन स्टडी के बारे में अगर कुछ लॉयर को बुला सकते हैं कि क्या क्या आगे होता है। जैसे कि अभी देखो कि विशाखा गाइडलाइन आपको सबको पता रहेगा, कि वुमेन्स एंटी हेरेसमेंट सेल के लिए यूनिसी का जो, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम तो हमें ऑर्गेनाइज करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट दैट सपोर्ट के लिए। देन एंटी रैगिंग कमेटी हमारे पास या नहीं, रिजर्वेशन रिलेटेड कमेटी, दैट इज अगर इफ हो जाती है, दैट विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट एज वेल एज हायर एजुकेशन स्टूडेंट को, कि अगर कुछ स्टूडेंट उसमें लिया है, अगर अभी भी मैंने बात किया कि वैसा कि ये सब कमेटी में हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव तो होना ही चाहिए। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव तो अगर रहेगा तो इट विल बी बेनिफिटेड, बिकॉज विदाउट स्टूडेंट, विदाउट के समस्या हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन ऑल दिस कमिटी इज वेरी इसेंशियल, और उसका प्रोग्राम हमें सब लेना है और उसके बारे में सब करना है कि ये जो कमिटी के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा था कि वैसा कि हमारी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी क्या है और एंटी रैगिंग की पॉलिसी क्या है, पुट इन आवर वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट में सब रखना है। और इसमें जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक्शन क्या है कि पॉलिसी फॉर ईच मैकेनिज्म टू बी मेड ऑन इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड एंड ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये तो हमें रखना है। कमिटीज टू बी फॉर्म विद स्टूडेंट मेंबर्स, जैसे मैंने बात किया था कि स्टूडेंट को भी उनके साथ लेना है। अवेयरनेस पोस्टर्स एंड बोर्ड्स टू बी डिस्प्लेड, ये भी हमें डिस्प्ले करना है सब जगह पे। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट टू बी फिल, वो भी हमें करना है फ्रॉम द स्टूडेंट कि रैगिंग हुई नहीं, व्हाट एवर इट मे बी, वो सब हमें करना है। देन इनके बारे में सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज, हम लोग कर सकते हैं फॉर द ग्रेट अवेयरनेस, रिपोर्ट्स कैन बी फिल, ये सब हमें लेकिन ये सब बातों का हमने रिपोर्ट्स और सब रिकॉर्ड्स, ये हमें सब मेंटेन करना है। तो हमने अभी बात की थी कि पॉइंट नंबर वो 5.1.4 में, तो इसमें हम लोग अब जैसा कि परसेंटेज कैसा निकलना है, तो हम लोगों ने बोल दिया था कि अभी 5.1.5 में जैसा कि हमने जो बोल दिया था कि उसमें डिस्क्रिप जो है कि डाटा रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, तो डाटा रिक्वायरमेंट है कि अपलोड द ग्रीवेंसेस redressal policy document with reference to prevention of sexual harassment committee and anti-ranking committees, then constitutions of various committees for addressing the issues, minutes of the meeting of the committee, then number of cases received and redressal, ये हमें तो करना है, डाटा रिक्वायरमेंट तो हमें चाहिए। देन फाइल डिस्क्रिप्शन इसमें क्या अपलोड करनी है, इसमें द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द स्टूडेंट रिड्रेसल कमिटी under prevention of sexual harassment committee and anti-ragging committee. Minutes भी लिखते समय, minutes, how to write the minutes, how many person was there, what was the agenda, and with the signature, there is also some strategy, there is some technique how to write the minutes. Only this is resolved to that, and action, this is taken this action, but what point is this? All the things we should have to mention in that minutes. That is very essential part. Though that is very small things is there, but we should have to mention all these things in minutes. Then upload any additional information. अगर कुछ है, अगर कुछ related to that committee, हमें कुछ है तो वो भी उसमें ये करना है। और डिटेल ऑफ द स्टूडेंट ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड रैगिंग केसेस, हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट नंबर 5.1.5
और इसमें जो है कि मिनट्स तो मैंने बात किया था, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हमें उनका प्रूफ हमें रखना है। और वो प्रूफ खाली बोलेंगे तो विद द सिग्नेचर ऑफ योर मैनेजमेंट रहने दो, एचओडी रहने दो, डायरेक्टर रहने दो, with the seal and signature, then the document mechanism of redressal, reports of grievance and mechanism with a timeline, then web link reports, our geotag photo, put it on your own website. That is the very essential thing. Now we talk about the only one point, and that was uh, student support. Now we are going to student progression. There are, see, uh, we have very less time, but now we are going to 5.2. I will go very speedily. The point number 5.2, that के indicator is student progression. इनके लिए तो अभी student progression में तो in the student progression there is a 30 matrix है, 30 is a very big points out of 140 for the student progression. And in the student progression we will see the average percentage of placement and outgoing student during the last 5 years. That is the point number 5.2.1. And 5.2 point is the student progression. We are talking about the student progression. And in this student progression, the data template with the list of students placed, name of the company, and it is up. It means the placement cell is essential in हमारे इंस्टीट्यूशन में वो है क्या, विथ डॉक्यूमेंट वहाँ पे हम लोग सब करना है। ये हमें एक प्लेसमेंट सेल, दैट इज वेरी इसेंशियल थिंग, बिकॉज हमारे स्टूडेंट के आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर हमने क्या मैकेनिज्म किया है कि कुछ ड्राइव किया था कैंपस में से, कैंपस में कोई कंपनी के लोग आए थे, हाउ टू conduct interview, know how to work, write the CV and all the things. It means the student placement center is there, and activities to that is a very essential part of that. Then in-house placement drives and full campus drive can be considered in this point. Now we are talking about the student progression, and there is a 30 matrix is there, that is a quantitative matrix. It should be used to, institution should be very clear, and uh, this should be very authentic and very sensitively. We have to put all information, because this is a quantitative matrix. Then placement cell, some placement sales coordinator, HOD, whatever it may be, you may mention there. Then what is your placement policy, placement officer, who is your placement officer, and for the supportive document will be support placement cell reports every year. उनका placement कितने साल कितने बच्चों का, अगर एक ही स्टूडेंट है उनको 4 जगह पे प्लेसमेंट हुई है, तो वो दैट विल बी ट्रीट ओनली वन प्लेसमेंट। अगर ये स्टूडेंट है वो 4 कंपनी में उनका, क्योंकि 4 जगह पे उनका नौकरी का लेटर मिला था, लेकिन वो जो ही ज्वाइन ओनली वन प्लेस, दैट मीन्स कि ओनली वन प्लेसमेंट इज देयर, नॉट 4 प्लेसमेंट। We should very careful for that. And year wise percentage should be kept with the list of student list, can be uploaded on website, and link can be given in SSR. But that time the document will be in the placement cell. That document should be in the placement cell. That time कि अगर कहाँ पे placement है तो उनका letter, उनके appointment, whatever it may be, we should have to keep with us. That is the why the care team visit that time. That time they will definitely visit that your placement cell. And जैसे कि मैंने बोला कि 2 जगह पे 3 जगह पे placement, that will be treated as a one. Then is the offer letter, appointment letter for support, that is very essential for the SSR report, whatever be document with you. And in this thing, while talking about 5.2.1 average point of placement, in this thing, the average and all the things is very same thing. And point number 5.2.2, average placement of students progressing
to higher education during the last 5 years. In जैसे कि in higher education during the last 5 years. Now we are talking about point number 5.2.2, that is the average percentage of student progression to higher education during the last 5 years, and the weightage is 15. Here is 15 weightage is there, and in this thing, number of outgoing student progression to higher education, this is very essential part, and the weightage is 15 for this. Uh, Total weightage for this was 30, and in this point 5.2.2 there is a 15 point only, but just like a UG to PG, some subject BA become BSc, then they join in MA, MCom, MSc, whatever it may be, and but that there is no gap. अगर ऐसा ही डाटा हमें रखना है कि लास्ट 5 ईयर में हमारे यहाँ के बीए के एम बी कॉम के कितने स्टूडेंट हमारे एम कॉम बी वहाँ के हमारे यहाँ पे भी नहीं, तो अगर कितने जगह पे किधर जगह पे गए हैं, अगर देर इज गैप रहेगा 4-5 साल का, तो दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल. बट अगर सेम टाइम की इफ ही दे गॉट दे एडमिशन, दैट टाइम एडमिशन देने के बाद भी उसका हमें सब एक देखना पड़ेगा, तो उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो फिक्स स्ट्रक्चर है, उनका आइडेंटिटी कार्ड है. वी शुड हैव टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट विथ अस, क्योंकि हम बताएंगे कि हमारे से 10 स्टूडेंट से 90 स्टूडेंट की एडमिशन लिया या मास्टर लेवल की पर अगर दूसरे हायर एजुकेशन के लिए, तो वी शुड हैव टू कीप ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विथ सम फी स्ट्रक्चर, फी का रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, certificate रहेगा, transfer certificate, whatever it may be. We should keep all document with us for this point, UG to PG, PG to MPhil, then PG to PhD or MPhil to PhD, whatever it may be, PhD to postdoctoral. आणि जैसे कि only student who got admission for admission higher education can be इसमें consider हो जाएगा. इसके लिए कि जैसे कि मैंने बात किया था कि प्रूफ ऑफ एडमिशन लेटर तो होना चाहिए, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड वो भी हमें देखना है, देन कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट टेकन फ्रॉम द कॉलेजेस वो भी हमें देखना है, और कॉपी ऑफ हायर एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, अगर उसने डिग्री लिया है तो उसका देखना है कि हायर एजुकेशन का डिग्री सर्टिफिकेट क्या है. ये सब देखते समय कि स्टूडेंट डाटा ईयर वाइज हमने रखना है, और बीएससी करने के बाद अगर वो एमए को भी गया है, देन इंटरडिसिप्लिनरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन को गया है, that can be considered for their, that is the point for higher education. And PG to MPhil, just now I spoke which program and all the things. Is just I talk about the educational progress in processing for the higher education system. That was the point number 5.2.2. And in this point, basically the formula is the same number of students and how many students got admission for further education, and divide into 100. That is the average point is there. Calculation is automatically came on your SSR report, and the supporting document we should have to submit on SSR report. Any additional information is detailed student progression in higher education data template is there, and in this point. For the average percent of student progression in higher education during the last 5 years, we should have to keep all the files and all the things with us. That is very essential part. While we are shifting to 5.2.3, that is the qualifying regarding the average percentage of student qualifying in state, national, international level examination during the last 5 years. जैसे कि स्टेट एग्जामिनेशन रहने दो, देन नेशनल का रहने दो, ये क्वालिफाइड हुआ है कि नहीं, स्टेट का, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल, जैसे कि गेट का रहेगा, देन देर आर सो मेनी एग्जाम का रहने दो गेट, जैसे कि ऐसे जो एग्जाम है सिविल सर्विस का रहने दो, स्टेट लेवल का रहने दो, स्टेट गवर्नमेंट का रहने दो, तो हाँ एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इन स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, एंड इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में नहीं तो कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाइंग तो किया है, लेकिन अपियर कितने हुए, कि जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन सो एंड सो, क्वालिफाइंग दिस
This is a different story, but appear, this is also essential thing. आणि इसमें ये जितने भी क्लेम किया है, कितना भी अपेयर किए है, तो वो तो हमें तो भरना ही है, क्योंकि डीवीवी में सब अगर चेकिंग में आता है तो अच्छा नहीं रहता। तो इसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है, तो इसकी स्कैन कॉपी ऑफ ग्रेड कार्ड, उसको क्वालिफाई किया है तो ग्रेड का कार्ड कुछ रहेगा, लिस्ट ऑफ नंबर स्टूडेंट ऑफ ईयर वाइज अंडर ईच हेड, द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट तो ईयर वाइज रहेगा। ये सब हमने देखना है, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन, इसके लिए स्कैन कॉपी ऑफ हॉल टिकट्स, ये तो हमें सब देखना ही होगा, और ये देखने से ही हमें ये जो स्टूडेंट का परसेंटेज क्वालिफाइंग द स्टेट नेशनल इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन के बारे में। लेकिन द प्रोसीजर इज सेम, वी शुड able to keep all the documents, scan document with us, because at the time of this is also um, quantitative matrix. It means you may should very carefully. And now we are shifting 5.3 5.3. This is related to um, this is related to student participation and activities. Student participation activities and weightage. See, out of 140, here the weightage is for this indicator is 50. It means student participation and uh, activities. The weightage for this is 50, and in this point, 5.3 point, we are talking about 5.3.1 number of awards, medals, and outstanding performance. See, we are talking about the 5.3 point, and that is related to student participation and uh, activities. That is the thing is that the institution promotes inclusive practices for social justice and better stakeholder relationship. The institution promotes value-based education for inculcating social responsibility and good citizenry amongst the student community. The institution has the required transfer infrastructure and promotes active participation of the students in a social, cultural, and leisure activities, encouraging students' participation in activities, facilitate developing various skills and competencies, and foster holistic development. This is the point number 5.3, student participation and activities. And in this point, the in this key indicator, for this indicator 50 points is there, and in metric number, the 5.3.1 is number of award medals for outstanding in sports, culture, then state level, national level, international level. Award for team event should be uh, counted as a one. अगर हमारे यहाँ बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, अगर 6 student participate over there, but the event is only one, not a 6. That is the teamwork. And during the last 5 years, 5 year combination, number of awards, medals, outstanding performance in sports, culture, activities, university, state level, we counted as a one. इसमें year 5 year का, और numbers कितने numbers है, और यहाँ पे हमें देखना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी एज वेल एज स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑल सर्टिफिकेट। इसी टाइम पे हमें सर्टिफिकेट भी उसमें प्रोवाइड करना है। इस और ये सर्टिफिकेट देने से भी, जैसे कि बोला कि अगर वहाँ के कुछ फोटोग्राफ, जैसे जो जो फोटोग्राफ जो भी रहेंगे, तो उसके साथ देना है ये कॉपीज ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट भी इनके साथ हमें जुड़वाना है। इसके साथ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु ओन अवार्ड्स ड्यूली साइन बाय द एचओडी, वो भी हमें करना है कि स्टूडेंट्स की उनकी लिस्ट हमें बनाना है। विद इफ देयर इज सम सर्टिफिकेट्स वी शुड हैव टू that will put on our website or SSR report, that will be uh, definitely advantage for the SSR report. And the team event participate will be considered only one. If any team is there, only that events might be one. And participation public day period considered for NCC.
but the photographs and all the things is there. Then अगर कुछ क्लासिकल गाय रहने दो, कैरम का कुछ रहने दो, इसी राइटिंग का कुछ रहने दो, वॉलीबॉल का रहने दो, टेबल टेनिस का है, सर्टिफिकेट स्कैन करके ही हमें सब ये आगे रखना है. दिस इज द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज. इसके बारे में तो हमें तो सब साथ में तो रखना चाहिए, लेकिन इसमें ये कॉपीज ऑफ द अवार्ड, एनी एडिशनल परमिशन, नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसका डाटा टेम्पलेट है एस रिपोर्ट के ऊपर. तो लास्ट 5 years का हमने वो वहाँ पे सब फिल करना है. बिकॉज आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन एट द टाइम ऑफ डाटा वेलिडेशन and verification. So all the things should be with us. If any clarification for your DVV, you may contact respective person. What is the thing? What is the lacuna? What was the problem? But the in the gradation, this thing is very essential to transparency and all the things is there. Now we talk about the 5.3 point student participation and activities, and in the same point, 5.3.2, if we saw this point, that is the institutional facility, student representation and engagement and extracurricular activity. It means student council रहने दो, student representative on various bodies as per established processes and norms. यहाँ पे हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल का. और ये कहे कि ये जो है दिस इज अ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, क्वालिटेटिव है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेयर टीम विजिट दे विल सी ऑल द थिंग्स दैट देयर इज अ स्कोप टू शो एंड इनकलकेट सम इंफॉर्मेशन ओवर हियर. जैसे कि 500 वर्ड्स में हमें लिखना है कि स्टूडेंट काउंसिल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, कि हम लोग ने सर्कुलर है, नोटिस बोर्ड है, नहीं तो कुछ और इलेक्शन कैसे लेते हैं, देन वो इलेक्शन की हमारा मैकेनिज्म कैसा होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इट शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट while focusing on student council. As per the, and it should be as per the guidelines. You should keep guideline also with you, because the each and every point should be there should be evidence all the things. The student representative various committees, जैसे कि हमने बात किया था कि सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी है, एंटी रैगिंग कमिटी है, so many committee, though there is so many committees, sometimes canteen committee रहती है, some gym खाना committee रहते हैं, whatever it may be. But that time the student representative in various committee is very essential. And suppose if some student committee on your NSS, then that time we should अगर हमने कुछ एक बोर्ड बनाया, कुछ एडवाइजरी कमेटी है, तो वहां में हमारा स्टूडेंट का नाम भी कैसा डाल दिया है, यू शुड फोकस ऑन दैट thing also. Student representative in NSS, in student welfare, in sexual harassment, in anti-ragging, whatever it may be. But a student representative in all the committees very essential, because we are talking about the point number 3.2. This is a qualitative thing. Then curriculum में हमने स्टूडेंट का सहभाग कैसा लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा लिया, कि वॉट एवर इट मे बी, कि जैसे कि ये सब चीजें हमें ऑन पेपर विद द स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा नॉर्म्स, कुछ प्रोसेस बनाई, तो दैट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर अस. एंड फाइल द मीटिंग, जब भी हमारी मीटिंग रहेंगी, स्टूडेंट के साथ रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो उनके मिनट्स हमें रखना है. उसमें तो मिनट्स में आपको तो पता है कि नोटिस ऑफ मीटिंग, डेट, प्लेस, अटेंडेंस, कितने थे, उनके सिग्नेचर, व्हाट वाज द एजेंडा एंड व्हाट वाज द मिनट एंड व्हाट वाज द decision, whatever it may be. But it should be mentioned with the signature of the respective person. That is, that minute should be uploaded and it should be there. Though this is a qualitative metric. Then separate filing for each committee. मैंने बताया था कि हर एक प्रोग्राम का एक एक फाइल हमने रखना है. Then document of all the activities under student representative, वो भी हमें सब रखना है. ये करते समय कि अगर कोई जगह पे एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी रहती है, CDC, तो वहां पे भी कि अगर हमने स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कैसा किया, फ्रॉम द गर्ल स्टूडेंट, फ्रॉम द मेल स्टूडेंट, व्हाट एवर इट मे बी,
कि जो कैसा है और व्हाट इज द यूज, उसका उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, व्हाट वाज द डिसीजन, अगेन द मिनट्स एंड व्हाट द थिंग इज बी देयर। देन आईपीएससी का भी, आईपीएससी में कि हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, और उनका उनमें और एलुमनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट है कैसा है, देन स्टूडेंट वेलफेयर, एनसीसी, एनएसएस, that is also very important form, because after that the peer team giving only 0 to 4 uh, 4 points only कि जैसे जैसे आपका कमेटी में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, वो देखने के बाद वो सब पता चलता है कि ये रिकॉर्ड्स और फाइल्स ये सब देखने से जो मार्क्स देना है वो उसके ऊपर रहता है। सेपरेट डॉक्यूमेंट वी शुड हैव टू keep, and at the time of pair team visit, they will see all the document, because that is a qualitative thing is it. And in point number 5.3 point, we are going to shift there. Then again I am talking about 5.3.2 कि paste link for additional information, link करना है and upload any information regarding this, it should be there. And जैसे कि मैंने बताया था कि describe the student representation in engagement in various administrative, co-curricular and extracurricular activities within a maximum of 500 words, वो भी अपने अपने को करना है। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पॉइंट नंबर 5.3.3, द weightage for this is the 20, and this is the average number of sports and cultural event competitions in which student of institution participated during last 5 years. The same thing is there, document and all the things with the evidence. We should have to keep all the things, list of event, competitions, date, timing, place, all these things, number of sports and cultural events competing. For this point, we should have to prepare the reports of the event, upload any additional information, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स, कंपटीशन। आपके यहाँ अगर कुछ स्पोर्ट्स का डिफरेंट रहेगा, सब स्पोर्ट ऑफिसर रहेंगे, स्पोर्ट डायरेक्टर रहेंगे, ही दैट फेलो इन दैट यूनिट डेफिनेटली यूजफुल फॉर दिस पॉइंट। एंड कितने सेमिनार स्पोर्ट्स हमारे ग्राउंड में, इन हाउस, आउट हाउस, दूसरे कॉलेज, इंटर कॉलेज, वॉट एवर इट मे बी, इट वी शुड हैव टू maintain all the things. And even जैसे कि मैंने बोला, can be split into activities and add value of your SSR, क्योंकि इसमें अपने SSR में we should have to maintain all this, and because this is a quantitative again, this one is a quantitative, 5.3.3 is a quantitative, क्योंकि इसमें जो नंबर और ईयर जो करना है, यू शुड लास्ट 5 ईयर के वो बहुत अपने केयरफुली करना है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, इंक्रीज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, देन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, म्यूजिकल एक्टिविटी रहने दो, जैसे फुटबॉल रहने दो, टूर्नामेंट रहने दो, व्हाट एवर इट मे बी। देन जैसे कि डीवीवी नेक, ये जो सब इवेल्युएट करने क्योंकि करेगी, क्योंकि दिस इज अ क्वांटिटेटिव इवेंट, दिस वन इज। नाउ वी आर गोइंग टू last parameter, that is a 5.4, and 5.4 is alumni engagement, and the weightage for this is a 10 points is there. In alumni engagement, the alumni are strong support to the institution. That is a true, because the alumni is a asset actually for that institution, and they will give a strong support to the institution. And active alumni association can contribute in academic matters, student supports, as well as mobilization of resources, both financial and non-financial. The institution nurtures the alumni association to facilitate them to contribute significantly to the development of the institution through financial and non-financial means. That is the thing regarding the alumni engagement. The weightage for this is 10, but though there is a 10 in 10 also, there is a 5.4.1 and 5.4.2. Though this is a for 10 uh, 10 weightage, then in 5.4.1 there is a
there is a registered alumni association that contributes significantly to the development of the institution through financial and other support services. रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन, अगर आपके यहाँ रजिस्टर्ड एलुमनाई है तो कीप that certificate with you. Their office barriers, their office and infrastructure, their contribution, their role in various committees and development of the present student and development of the society and development of the colleges or our institution. The role of alumni association is very essential. But the thing is that it should be registered. अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर की प्रोसेस वी शुड हैव टू स्टार्ट दैट कभी रजिस्टर हो गया, उनका क्या ऑफिस कहाँ पे है, हु इज द ऑफिस बेयरर्स, और उसका मीटिंग कैसी होती है, मीटिंग का रिकॉर्ड्स क्या है, जो भी है तो हमें ये पॉइंट में रखना है. दिस इज द क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, क्योंकि दिस टाइम the peer team will visit the alumni office and they interact with them also. That's why there is a scope to maintain all documents, all files, and all the documents, necessary document is necessary because इसमें हमें क्या करना है कि describe contribution of alumni association to the institution within a maximum of 500 words. हमें ये करना है. और लेकिन जो भी है कि वॉट एवर इट मे बी कि पेस्ट लिंक ऑन योर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन योर एसएसआर. और इसके लिए जो पहला मैंने पॉइंट लिया था कि उसमें देयर इज रजिस्टर एलुमनाई, द 5 वेटेज इज देयर, एंड अनदर पॉइंट इज देयर इन दिस पॉइंट दैट इज द एलुमनाई कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग लास्ट 5 years. That is the there is a 5 marks, 5 means, and 5 is a 10 matrix. Then this is again quantitative matrix. That is very essential, quantitative matrix. Then below 5 lakh, 4 to 5 lakh, then more than 5 lakh, 3 to 4, 1 to, that is the option, A, B, C, D, E. Again, we have to give all of our all the data required for this, the alumni association, name of the alumni. Then quantum of contribution, then audited statement of account of the institution reflecting the receipt. और इसमें है कि upload all the files on the your website. And in this point कि अगर जो अलुमनी है हमारी जो है उसमें कुछ क्या ऑर्गेनाइज किया गया, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलुमनी एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. देयर शुड बी सम टॉक, सम प्लेसमेंट के बारे में कुछ किया, रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ किया है. अगर कोई की अलुमनी के हमारे बड़े पोस्ट में बाहर जाते हैं तो उनके उसने हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ एमओयू किया है क्या, is there any MOU with anybody else, those who are our alumni. तो हमें देखना है और ये सब करना है. तो इसमें पीयर टीम ये सब तो चेक करके करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है. तो अकॉर्डिंग टू दैट कि alumni रजिस्टर अगर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो इसमें अगर रजिस्टर है तो कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, वो तैयार रखना है. सपोर्टिव एविडेंस ऑफ एलुमनी कंट्रीब्यूशन ये भी हमारे साथ रखना है. और जियो टैग फोटोग्राफ्स एंड इवेंट रिपोर्ट ये हमें सब रखने पड़ता है. और इंटरेक्शन विद, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि इंटरेक्शन विद एलुमनी, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, इंटरेक्शन विद टीचर, नॉन टीचिंग. तो जिस टाइम इंटरेक्शन विद एलुमनी के साथ होती है तो दैट टाइम ऑल्सो that is also essential part, and that is the part alumni engagement. And for that candidate there was 10 point was there. It means we saw that कि अगर आपका alumni रजिस्टर है तो उनका कुछ पैन कार्ड है क्या वो भी देखना पड़ेगा, ऑडिटेड रिपोर्ट वो भी देखना पड़ेगा, वॉट एवर इट मे बी कि उनका एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, वॉट एवर इट मे बी. एंड वहाँ भी ऑप्शन है तो उसके ऊपर हमने जाकर खाली क्लिक करना है. और वो करने के बाद हमारा ये जो 5.4 का जो लास्ट पॉइंट था वो था कि 5.4 अलुमनी एंगेजमेंट. एंड ये करने के लिए हमें एसएसआर रिपोर्ट के लिए जैसे कि क्वांटिटेटिव में मैंने बात किया, क्वालिटेटिव में मैंने बात किया, ये सब होने के बाद ये पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के बारे में
ये सब अभी मेरा पूरा लेक्चर हो गया है. अभी हमारे पास 15 मिनट्स बाकी है. तो यस सर, थैंक यू थैंक सो यू मच. सो मच। थैंक अब यू सो क्वेश्चंस मच. हम लेते हैं सर। एंड थैंक यू सो मच। इसीलिए आई गिव 15 स्पेयर हाँ, 15 मिनट्स हियर. आपने सर इतनी गहराई से जाकर उसको बताया। मेरा एक सवाल था सर, एक नहीं बल्कि मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो एंटी रैगिंग जो कमेटी है, टीकाराम में एंटी रैगिंग कमेटी है, और हम लोगों ने उसको वेबसाइट पर भी उसका एक आइकन बना रखा है। तो सर जरा ये बताइए, हमें गाइड करना करिए कि उसमें हमें कौन कौन सी पॉलिसीज को बनाना है, या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंटी रैगिंग के लिए, हम केवल उसको डाल दें या और किसी चीज की जरूरत है? सर, एम आई ऑडिबल टू यू? See, there are some guidelines, but you may check the UGC guidelines also. For that purpose, is there any guidelines for anti-ragging guidelines from UGC side? That might be helpful to you. I think so. That is the thing only. But I will also find out and I will tell you afterwards. No And one problem at more all. question, sir, because you know that in Tikaram there is no ragging. It Yeah, is ragging free yeah, yeah, college. yeah. Very good, nice one. So, No problem at all. No problem at all. This is a good thing. Huh. okay. No, no. Uh, Generally in our art, science, commerce college, there is no ragging as such yes, because yes. students are coming and they are going. But sometimes some professional colleges might be there. But this is a good thing. Congratulate for that. No ragging. This is So good. we only put all these policies, etc., and that Supreme Court order and nothing else. So we are doing that. So I wanted to take your guidelines. And one more question, sir, that just like you know that higher education also and state education also ask for CSR, that is corporate social responsibility. So, sir, that we are not very big colleges like universities. So, we should go for the projects with CSR. We should contact the industry so that we could have all these MOU, etc. And it will be beneficial for us also and for the corporate world. Just like in Pune, Pune is a hub. So, sir, in Aligarh, we don't have very big industries. So, it is a big problem that what we should do in that CSR column. Sir, you are muted. If you are there, No, kind. no, Sir, kindly unmute yourself. Unmute yourself, sir. Yes. no, no. There is no Professor Dhanil Lokhandi speaking. Yes, you heard my your audio audible for me? No, no. My question was about CSR, that is Yeah, corporate yeah. social responsibility. Yes, sir. Okay, So okay. Huh, we don't have any huh. project like that. So I No, no, was no. But thinking, yes. if you contact any company anywhere, because yes, there are so many things they are providing some grant. There is a compulsory for them. Some if we approach for CSR for any company, they will provide some grant to our institutions. And thing is that they will their as per their criteria. Suppose they want to give some CSR from a special child or some poor girl or some whatever it may be. But according to their norms and according to their guidelines, they will definitely provide to you. But we should have to approach them. That is the thing. And sir, if we don't have that CSR MOU, so there will be minus marks or negative marking for that? No, no, no. There is no negative mark as such. Negative mark is not there. But there is a scope to for you make contact to HP or Rotary Club or whatever it may be. There are so many things, but yeah, there are your alumni also there, and
so many things is there. No problem at all. There is no negative marking as such, but there is a scope. Thank you, sir. Now I invite Professor Seema Agrawal to give 1 a minute, please. I am yes. leaving this meeting, and again I am joining because some problem is there in my. Okay, sir. Thank you, Ah, no, thank you so much. Hmm. So Uh, listen, I will within a minute I will join again. yes, Otherwise, sir. 1 minute, please. Okay, no. मकरन, इकडे ये जरा. Okay, sir. 1 minute, Thank 1 minute, please. 1 minute, please. 1 minute. हाँ. हम्म. हा. अरे मकरन, हे काय झालं बघ रे? काय झालं हे? काय करू? व्हिडिओ स्टार्ट झाला. कर ना पण. आता बॅक जाऊन परत हे करू का जोडून? काय झालं माहित नाही. हा. Yes, madam. So, Professor Seema Yes. Agrawal is here, Yeah, no and problem. from my, you can say that the depth of my heart, Ah. I'm very thankful for you. And now I'm giving this mic to Professor Seema Agrawal ji. Sorry, madam, some problem was there. But you may call me anytime, and I will definitely help you. No problem at all. And this was very nice opportunity for me also to interact with you. This is a good thing, and I'm also very happy to interact with you. And this is a very good session. No problem at all. Thank you so much for your organization, your college, and I think some Delhi University is also there, na? Some Tej Bahadur Khalsa College is also there, and Shri Tika Kanya Mahavidyalaya Aligarh. I जी. am very thankful to you also, and my friend Khan sir also. सर थैंक यू वेरी Yeah, मच. आपका thank you. हमारा 20 तारीख को भी एक लेक्चर था और आज भी हाँ, हाँ. बहुत माइन्यूटली आपने सारे पॉइंट्स को बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपने पूरा बताया कि आईक्यूएससी इसमें हम लोग नेट में किस किस तरह की सावधानी बरत के अच्छा काम हो सकता है. और ये आज हमारा 5वां दिन है जो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 8 दिवसीय जो हमारा नेशनल लेवल का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है. इसमें आज 5वें दिन में आपका ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन के पे लेक्चर है और इसमें आप प्रोफेसर धनंजय बाबू राव, फॉर्मर डायरेक्टर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लर्निंग एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले पुणे, आपने यहाँ पर अपने अपने वहाँ से इतना अच्छा टाइम देकर और इतनी अच्छी तरह से माइन्यूटली हमें पूरा आपने ध्यान दिया और हमें पॉइंट्स के बारे में बताया. लेकिन सर हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी पॉइंट पे तो हम आपसे ही इससे पूछेंगे. Definitely, तो आप definitely. अवेलेबल होंगे और हम आपसे कोई भी Yeah. No problem. सजेशन Indeed, ले higher सकते हैं. institution, I am there. No problem. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे टीकाराम कन्या महाविद्यालय और आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर उमे कुलसुम और को कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर ममता श्रीवास्तव और हमारे यहाँ सभी साथी आज यहाँ मौजूद हैं और आप सभी ने आपका ये सारा लेक्चर सुना और बहुत अच्छी तरह से हमें पता चला. बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए जिसे हमें नहीं पता था कि इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. जैसे कि मैडम ने पूछा कि एंटी रैगिंग कमेटी, Ragging के बारे तो में. ये Yeah. बात सही है कि हमारे कॉलेज में लड़कियों का कॉलेज है तो रैगिंग यहाँ होती ही नहीं है. लेकिन ऑफिशियली फिर भी जरूरी है कि अगर कभी कोई एक लड़की किसी को परेशान करे या कुछ तो उसके लिए करना है. इसीलिए मैडम ने पूछा कि इसके लिए करना क्या है हमें, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे यहाँ जनरली नहीं है. लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं तो फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए. बस बाकी बहुत बहुत धन्यवाद. Do well. Wish you all the best. जी थैंक यू. हम लोग अभी 15 to 20 मिनट्स के बाद पुनः मिलते हैं. Dear participants, have your lunch and join us again at 3:15 or 20. Thank you so much. Thank you so much.
Sir, he has done MCA with first division in the year 2004, MBA in IT with a grade A in the year 2010, and post-graduation diploma in project management with a grade A in the year 210. So he is a very young scholar who is among us. He has 20 years of experience in the education and IT industry and worked as a project manager and chief technology officer involved in setting up and heading enterprise scale implementation and integration in India and abroad. Sir, now it's over to you. शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रिंसिपल मैडम और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। एंड टू गो अहेड, माय रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ऑल माय सीनियर्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड आदाबर्स। आज जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, सो एवरीबडी इज कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश और वी कैन गो अहेड विद द हिंदी बाइलिंगुअल, राइट? सो व्हाई आई एम आस्किंग इज, अगर हम कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, तो इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। तो मैम, कैन आई पुट इट समवेयर बिकॉज आई हैव टू यूटिलाइज माई लैपटॉप एज वेल टू प्रेजेंट समथिंग, राइट? I will share with all, complete screen share कीजिए। तो हम शुरू करने से पहले अभी फिलहाल तो मैं ओपन कर तो हम आज के सेशन को जो मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हम थ्योरी तो जाहिर है कि हम हर जगह डिस्कस करते रहते हैं, हाउ मेनी क्राइटेरियाज आर देयर, सो यू पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट इट कि कितने हमारे क्राइटेरिया हैं, कितने हमारे सब क्राइटेरियाज हैं। हम उनको बार बार डिस्कस करेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं है, राइट? हम आज कोशिश ये करेंगे कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। रीज़न बिहाइंड इज कि हम जब SSR या AQR या IAQA, राइट, हम जब फिल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें कहाँ पर क्या चीज़, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ देने हैं, क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टेम्पलेट्स हैं वेबसाइट पर, NAC की वेबसाइट्स पे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ नेम ऑफ द प्रोग्राम्स की अगर बात करूँ, तो उसके अंदर एक टेम्पलेट है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन रहती है जिनका हमें ख्याल रखना है। तो अभी फिलहाल में PPT के थ्रू 10-15 मिनट PPT से जो हमारा डेवलपमेंट है, NAC का जो डेवलपमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डायरेक्टली AQR के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट QLMs है और QNMs हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एज यू कैन सी कि हमारा जो पहले स्टार्टिंग में प्रोसेस था, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी जब 2014 में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, और आपके यहाँ भी शायद
मतलब इट इज योर गोइंग टू बी थर्ड साइकिल, राइट? तो सेकंड साइकिल से पहले जो फर्स्ट साइकिल होगा वो मैनुअल पीयर विजिट हुआ होगा शायद, है ना? peer visit। तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि पीयर विजिट में हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, और वी गैदर द इंफॉर्मेशन विद आवर सेल्फ, और उसका एक डिजाइनिंग मेथड था जो नेक ने डिफाइन किया। तो वो खैर बहरहाल क्योंकि मैनुअल था तो पीयर टीम ने विजिट किया होगा आपके यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और आपकी कोर्स फाइल फॉर एग्जांपल या सिलेबस को रिव्यू किया होगा, या इट डिपेंड्स जो भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे और आपने उसका बेहतर जवाब भी दिया होगा, एंड बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चंस ओनली दे गिव द ग्रेडिंग। तो नेक ने क्या सोचा कि साहब ऐसा है कि एक तो इसके लिए हमारा क्या हो रहा था, इंडिया में हमारे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूजी पीजी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। तो नेक ने क्या किया कि नेक ने सब चीज़ को ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, और जितने भी डीवीवी प्रोसेस उसमें इम्प्लीमेंट किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम जो अब ऑनलाइन हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए भी बहुत इजी हो गया, और जो इवैल्यूएशन पार्ट नेक के लिए हैं उस उनके लिए भी बहुत इजी हो गया, राइट? वो इजी कैसे हुआ है आप जानते हैं कि हर चीज़ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पोर्टल थ्रू द फ्यू लिंक्स, एंड देयर इज अ डेफिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑन द नेक। सो वी आर just downloading the templates, providing the information and just submitting. That's very simple, right? तो आईक्यूसी हर एक एंटिटी को एस्टेब्लिश किया नेक ने। तो तो नेक ने एक आईक्यूसी की जो फंक्शंस हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है क्वालिटी मेंटेन का, जो जो कि मेजर एक्चुअली हमारा अम्ब्रेला हम कह सकते हैं। उस क्वालिटी के अंदर हमारे देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स, सो मेनी पैरामीटर्स, लेकिन उसमें उन पैरामीटर्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उनको हम कैसे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे एसएसआर, आईआईक्यूए और एक्यूआर, जो एक हमारा एक प्रोसेस है। उसके थ्रू हम नेक को पता कैसे चलेगा कि साहब मान लीजिए टीका राम के अंदर बेहतर सिलेबस रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेक ने डिज़ाइन किए अपने टेम्पलेट्स। नेक ने कहा कि साहब आप हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी कॉलेज ने वो इंफॉर्मेशन उन टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फिल की विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और वो सबमिट कर दी। नेक ने उसको इवेल्युएट किया बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स, एंड देन प्रोवाइडेड द ग्रेडिंग टू द इंस्टीट्यूट, वट एवर द इंस्टीट्यूट इज देयर। इसमें इको ओके, राइट, या इट्स फाइन। सो इस तरीके से आईक्यू का जो बहुत आईक्यूसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। जाहिर है AQR भी एसेंशियल कंपोनेंट है असेसमेंट एक्रेडिशन का, तो उसको हम आगे अभी डिटेल करेंगे। साथ में फिर एक चीज़ है देख रहे हैं रिवीजन ऑफ मैनुअल्स, राइट। सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उसने रिड्यूस किया असेसमेंट और एक्रेडिशन का जो लोड था हमारे ऊपर, जो पहले मैनुअल हुआ करता था उसको लोड को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ न्यू एक्सपर्ट्स, दैट वाज द डिफरेंट मॉडल। तो मैम जैसे मैं मैम से भी डिस्कस कर रहा था कि नेक ने क्या किया कि मान लीजिए आज टीकाराम के अंदर अगर कॉलेज के अंदर कोई हमारी पीयर टीम विजिट होती है या इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे सबसे पहले जब हम नेक टीम एस्टेब्लिश करती है, नेक पीयर टीम वो ये देखती है कि एक्सपर्टीज हमारे पास जो अवेलेबल डेटाबेस के अंदर एक्सपर्टीज है, वेदर दे आर अप्रोप्रिएट फॉर द टीकाराम। तो टीकाराम की प्रोफाइल ऑलरेडी वो होती है उनके पास में, so they are sending the expertise to the particular institutions according to the area. For example, if we have the engineering college, right? तो वो नेक पीयर टीम में जो मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे, दे विल स्पेसिफिकली कलेक्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे विल सेंड, राइट।
This is how actually they revamp the new design in the new ICT enabled system. पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने रिवैम्प किया और रिवैम्प करने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया। ऑफ कोर्स मतलब दैट्स वेरी सिंपल के मतलब ये जो हमारा न्यू एक्रेडिशन फ्रेमवर्क था उसके अंदर रीयूजेबिलिटी है, टाइम लेस कंज्यूम होता है, IAQA SSR सबमिटेड सब ऑनलाइन होता है और हमारे पास में कुछ इंडिकेटर्स हैं, नंबर्स हैं। देखिए मैम यहाँ पर कुछ जो मैं यहाँ पर अभी शो करूँगा QLM और QNMs इंडिकेटर्स मैट्रिसेस, वो कॉलेजेस के लिए डिफरेंट हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट है, राइट। सो अभी चूंकि NEP का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है AQR में, एंड आई होप सो जो AQR को हैंडल कर रहे होंगे उन्होंने ये उस चीज़ को नोट किया होगा कि अब जब हम न्यू AQR को ओपन करते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर NEP के कुछ QLMs ऐड कर दिए गए, right? So the number of QLMs which I am going to show you may be different, so that's not a problem. So please accept that might be it may be different from in my matrices, right? अब पहले क्या है कि अभी आप जब SSR सबमिट करेंगे उससे पहले IAQA सबमिट करेंगे आप, ऑफ कोर्स, राइट, इन द बिकॉज दिस इज द सेकंड लास्ट AQR फॉर द टीका राम, राइट, 22-23. The next year it will be the final AQR and might be possible the new binary accreditation, right? Because you heard about it. NAC binary accreditation के लिए आ रहा है, तो might be possible this may be the last version of the AQR in that format. Format in the sense कि templates यही रह सकती हैं, but जो process है वो उसका different हो सकता है, because I joined one of the seminar, तो वहाँ पर accreditation में वो पूरा सिस्टम ही रिवैम्प करने का डिज़ाइन ऑलरेडी वाइट पेपर्स पे शो हो चुका है। खैर बहरहाल तो हमारा जो IAQ है अभी एग्जिस्टिंग में, वो हमारा पहले क्या होता था कि वो लेटर ऑफ इंटेंट एक्चुअली हम भेजा करते थे। वो लेटर ऑफ इंटेंट जो था, वो लेटर ऑफ इंटेंट इज सिमिलर टू द IAQ, राइट। आफ्टर दैट वो लेटर ऑफ इंटेंट जो था आइडियली हर अब भी यही होता है कि जो IAQ है हम SSR से 1 महीने पहले सबमिट करते हैं, लेकिन इस प्रोविजन से पहले हम लेटर ऑफ इंटेंट सिर्फ 2 साइकिल में भेजा करते थे, विच इज May to June एंड November to December. That's it. That's a very simple one. That's a very story, I mean brief story about it, so which is not required. तो खैर बहरहाल हमारी जैसे मैंने अर्ज किया कि यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, दे हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सभी के पास में 7 क्राइटेरियाज हैं। की इंडिकेटर यूनिवर्सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में 34 है, ऑटोनोमस कॉलेज में 34 है और 32 है। सो दिस टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। तो मैं इसको बार बार इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता हूँ, विच इज़ अ वेरी सिंपल वन, राइट, फॉर दैट। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें NEP का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो मेरा ऑटोनोमस कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज आपके कॉन्टेक्स्ट में 38-41 के अलावा QLM इस पे ऐड होंगे। मैंने उसमें ऐड नहीं किए, तो यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में इट वाज प्रीवियसली इट पास 36, नाउ 7 QLM हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, सो आई अमेंडेड दैट वन। क्वांटिटी मैट्रिसेस 102 हैं फिलहाल यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, आपके में 98 हैं। माइट बी पॉसिबल, चूंकि इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मैट्रिसेस के नंबर की बात करते हैं तो एक मैट्रिसेस मेन मैट्रिक्स होती है, एक होती है सब मैट्रिसेस, एंड विद इन द सब मैट्रिसेस देयर इज ए सब एंड सब मैट्रिसेस, राइट। तो बहुत से लोग उसको सब मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिसेस है उसको कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है आइडियली केसेस में। कोई कहता है कि साहब जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के केसेस में 102 QNM है, वो QNM का मतलब ये है कि फॉर एवरी क्वेश्चन वट एवर द आंसर वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर कंसिडरिंग इट एज ए सेपरेट QNM। आपके केस में भी यही है, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि वरना फिर क्या होता है कि कहीं पूछा जाता है कि कितने ऑटोनोमस कॉलेजेस में कितने मैट्रिसेस हैं, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो कम बताते हैं आइडियली। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। खैर बहरहाल ये एक मैंने एक छोटी सी एक मैट्रिसेस बनाई है, विच इज ऑल्सो आई मीन देर आर 7 क्राइटेरियाज, राइट। फॉर ईच क्राइटेरिया देयर आर द QLM एंड QNMs, right? For example, curricular aspects, right? In curricular aspects, we have 11 QNMs and QLM, 2 QLMs.
तो सिमिलरली ये ऑटोनोमस और एफिलेटेड में वो डिफरेंट होंगी ऑफ कोर्स। तो मेरा जो इस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स है यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल एकदम दैट्स इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस और एफिलेटेड के बारे में थोड़ा सा आगे पीछे इसमें हो सकता है, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, बिकॉज कॉलेजेस और ऑटोनोमस के बारे में मैंने उसको कैलकुलेट अभी नहीं किया है। द सेकेंड इज नाउ द इम्पॉर्टेंट एक्चुअली गेम स्टार्ट। जब हम AQR हम स्टार्ट करते हैं QLM एंड QNM कॉन्टेक्स्ट में, तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टाइप ऑफ आंसर, ये पूछेंगे ईयर वाइज, ब्लॉक वाइज, करंट ईयर, यस और नो, राइट। तो इसके इसके अपने अपने मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं AQR के कॉन्टेक्स्ट में, SSR के कॉन्टेक्स्ट में ईयर वाइज अगर मैं कह रहा हूँ, तो उसका एक मीनिंग है एकेडमिक ईयर, राइट। अच्छा, एकेडमिक ईयर में भी होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं अपने एकेडमिक ईयर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हम जो अभी AQR सबमिट कर रहे हैं हम लोग अभी 22-23 में, उसमें एकेडमिक ईयर का मतलब 1 जुलाई टू 30 जून नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करेंगे, सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। So I raised a ticket to the NAC that what is the meaning of this AQR। तो मेरे पास जवाब आया कि साहब वो 1 जून टू 31 अगस्त इज द टाइम पीरियड फॉर दैट। अब अगर हम अपनी मर्जी से AQR में 1 जुलाई टू 30 जून अगर रखते, तो हमारे पास में एक तो हमारा 1 महीने या 1.5 महीना हमारा जो कम हो जाता, राइट। तो हमारे पास जो 1 महीने का डेटा था, वो डेटा में कम हो जाता, जाहिर है। और वो डेटा जो होता है वो एक्चुअली रिवर्सिव डेटा होता है। रिवर्सिव का डेटा का मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल पहली मैट्रिक्स की बात करूं मैं, कि हाउ मेनी सिलेबस रिवीजन हैपेंड इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है मेरा वो सिलेबस रिवीजन अगस्त में अगर हमारा BO से पास हुआ है, तो अगर हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एकेडमिक ईयर की नहीं है, तो वो हम उसको उसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और जब हम छोड़ देंगे तो हमारा जाहिर है नंबर ऑफ जो सिलेबस रिवीजन है वो कम हो जाएगा नंबर। अगर हमारा 10 था तो अब हमारा 11 हो जाएगा। तो वो होता है क्या, परसेंटेज में हमें बेनिफिट करता है। और नॉट ओनली दिस इंफॉर्मेशन विल इम्पैक्ट particular this criteria, it will impact to the whole criteria, right? If we are talking about QNM, it is the 102 QNMs which will impact। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, राइट। तो ये कुछ अगर हमें कभी होता क्या है, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ मैं, हमें कहीं भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट से टिकट क्रिएट करने के बाद में हमें पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारे पास एविडेंसेस भी होना चाहिए, राइट। जो हमने फेस किया बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ऐसा होता है कि नेक बात करता है सिर्फ एविडेंस की, रिटिन एविडेंसेस की। अगर हम अपनी मर्जी से किया और हमने मान लीजिए टेलीफोन पर भी नेक से बात की, और नेक ने कहा कि 1 जून टू 31 अगस्त इज योर एकेडमिक ईयर, और हमने डेटा उसको कंसिडर कर लिया और हमने सबमिट कर दिया AQR, राइट। तो हमारे पास DVV या इन फ्यूचर में जब हम SSR सबमिट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो हमारे पास में एविडेंसेस होने चाहिए जो भी हम एग्जैक्ट जो टिकट हमने क्रिएट किया उस टिकट का रेस्पॉन्स हमारे पास हो, ठीक है। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये भी है हमारे पास में कि अब नेक से हम कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं करते हैं आइडियल केस में, है ना। हमारे पास में एक टिकट मैकेनिज्म है नेक के पास में, उससे टिकट क्रिएट कीजिए। कोई भी अगर इशू है उसमें टिकट में अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, वो उसका दे विल रिवर्ट बैक। दैट्स अ वेरी सिंपल वन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में 3 साल पहले मैंने कम्युनिकेशन फ़ोन पे करना स्टार्ट किया था, और मेरे हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी कि बाद में नेक ने हमारे कुछ पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। और हमने उनसे कहा भी कि साहब वी टॉक्ड ऑन द AQR नोडल ऑफिसर्स ऑन द नेक, तो दे सेड दैट वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने उसके बाद से हमारे पास में कोई भी अगर हमें चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, हम सब टिकट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आप AQR सबमिट करती हैं तो नेक डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। अब हमने वर्बल मालूम किया था
तो हमने अपने एसएसआर में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को और कोर्सेज को इंक्लूड किया हमने। जब वो डीवीवी में आया तो डिप्लोमा कोर्सेज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, राइट। तो हमने अब उस क्वेश्चंस को भी हमने टिकट रेज किया और हमने उसको पूछा, और हमारे पास में वी हैव द रिटन एविडेंस एक्चुअली फॉर दैट। तो जब हम अभी AQR हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करूंगा। जब हम प्रैक्टिकल AQR सबमिट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो हमें पता ही नहीं, जिसकी वजह से हमें जो ग्रेड है, हमारा जो मार्क्स हैं वो हमें कम मिलते हैं। नहीं कर, और पीजी डिप्लोमा को करते हैं, the courses which is having more than 1 year validity they are considering, right। इसीलिए आपको एडिशनल बताता हूँ मैं, एक प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, राइट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्सेज इज क्लियर, मैं समझता हूँ, राइट, क्लियर है। लेकिन हम प्रोग्राम उसी को कहते हैं जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 1 year अगर है हमारे पास में, तो हम उसको प्रोग्राम में कंसिडर, एंड दिस इज मेंशन इन द SOP। जो हमारे यहाँ पर AQR हैंडल कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि SOPs के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं कि हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, हम क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो द प्रोग्राम एंड कोर्सेज में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, कहीं हम प्रोग्राम पूछते हैं तो वहाँ कोर्सेज हम मेंशन कर देते हैं, कहीं कोर्सेज पूछते हैं वहाँ प्रोग्राम कर लेते हैं। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट, राइट। क्योंकि हम जहाँ प्रोग्राम्स वो पूछेगा और हमने कोर्सेज डाल देगा तो वो हमारा वो कंसीडर नहीं करेगा, डीबी को डिलीट कर देगा और हमारे मार्क्स जो है वहाँ से डिडक्ट हो जाए, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे फाइनेंशियल मैटर की मैं बात करूं तो आइडियली फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट मानते हैं, ठीक है। करंट ईयर, अगर वो हमसे करंट ईयर की बात करते हैं तो किसी किसी जगह में ये हमारा एकेडमिक ईयर मानते हैं, किसी किसी जगह हमारे पास में ये ब्लॉक ईयर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू 31 दिसंबर। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास में उस मैट्रिसेस के कॉन्टेक्स्ट में, डिपेंड करता है कि वो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर मैट्रिस में लास्ट में देते हैं ईयर वाइज। ईयर वाइज, what does it mean by year wise? Year wise means academic year in ideal cases, right? So if we are talking about financial year, financial values, right, we have to remember that we have to mention in lakhs and crores, right, not in rupees. Sometimes what happens is we mention 1.25 lakhs, for example, I'm talking about. So lakhs is also not important, so everything should be in the numerical way and in lakhs and crores. And power is asked, if power is something there, so megawatt and kilowatts we are using it somewhere, we if it is asked, right. And of course, right, honest representation is essential because we have to be very honest in the neck, because whenever we are presenting any data, it must be remembered that we have to present the evidences for each and everything. If you will provide any data where the evidences is not there, हो सकता है हमें अभी 6 महीने 1 साल हमें ऐसा महसूस होगा कि ठीक है साहब, हमने तो गलत डेटा दे दिया, अभी हम पकड़े नहीं जाएंगे। आई एम टॉकिंग इन जनरल। लेकिन जब हम 5 साल की बात करेंगे, या हो सकता है कि डीवीवी टीम जब पिक्चर में आती है तो वो उसके एविडेंस अगर पूछ लिया ना, तो एविडेंसेस हमारे पास जो भी हम दे रहे हैं, इट मस्ट हैव द एविडेंस जो हमने लर्न किया। इसके अलावा अगर हमारे पास में एविडेंसेस नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी हम नहीं देनी है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। जैसे अभी हमारा एक वर्कशॉप हुई, फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप्स के लिए साहब नेक कहता है कि आपके पास में एक अप्रूवल लेटर होना चाहिए, आपके पास में पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस होना चाहिए, आपके पास में GPS इनेबल्ड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो एक चीज़ चल जाएगी, दो चीज़ चल सकती है, लेकिन ये नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। राइट। सो फॉर इन रिप्लेस ऑफ दैट, हाँ, फोटोग्राफ होने चाहिए। तो ऐसा आजकल कोई वर्कशॉप नहीं होता जहाँ फोटोग्राफ नहीं होते। यस, सो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन तो
जो हम AQR जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनकी कैलकुलेशन भी हमारे पास में जो गाइडलाइंस हैं, AQR की गाइडलाइंस हैं, वहाँ सब मेंशंस हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया कि जैसे परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स वेयर सिलेबस रिवीजन वाज कैरिड आउट, राइट? So this is how we are doing. We have the total, for example, we have the 38 programs, for example, and out of 38 programs, 18 programs where syllabus revision carried out, right? So just we have to put it the values where the syllabus revision got placed, and the in the denominator the total programs, right? This is how we are calculating the percentage of the programs. It is very simple, right? And the formula is also mentioned there in the guide. So SSR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जब SSR हम इस कॉलेज का फिल करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा नहीं है कि हमने SSR अगर हम सबमिट कर देंगे तो SSR एक्सेप्ट ही हो जाएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। SSR का अपना एक ऑटोमेटिक इसका एक मैकेनिज्म है जो कि ऑटो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब जैसे हम सबमिट करते हैं तो DVV पिक्चर में नहीं आती है, वो ऑटो कैलकुलेट करता है एज पर द इवेल्युएशन। चूंकि उनके पास जो सॉफ्टवेयर हैं, जब हम एक्सेल अपलोड करते हैं, राइट, सो दैट सॉफ्टवेयर रीड दैट एक्सेल, और एंड दिस इज हाउ वो रीड करने के बाद में डेटा हमें एलोकेट करता है, जो मार्क्स एलोकेट करता है। अगर हमारे पास में 30% स्कोर नहीं बनता है, राइट, तो वो DVV में नहीं जाए। DVV में तभी जाएगा जब हमारे पास में मिनिमम 30% हम उसके मार्क्स जो है, जो आउट ऑफ टोटल 7 पॉइंट स्केल जो है हमारे पास में ना, 4 पॉइंट स्केल है अभी, उस स्केल में 30% अगर हमारे पास होगा तभी हम आगे मूव होंगे, अदरवाइज हम उसमें नहीं जाएंगे। राइट। So this is DVV, data validation and verification, right, team, which I am talking about. DVV एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन एक टीम होती है, आपको मालूम भी होगा, जो कि सब चीज इवेलुएट करती है। वो हम में से हो सकता है, आप में हो सकता है, मैम से हो सकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया कि वी हैव द एक्सपर्ट डेडिकेटेड टीम्स, राइट। आपके पास भी मेरे ख्याल से काफी लोगों के पास में नेक्स्ट से मेल आया होगा, हो सकता है कि साहब, डू यू वांट टू बी बिकम एन एक्सेसर? तो एक्सेसर का मतलब ये कि अब नैक हमें DVV का पार्ट बनाना चाहती है, और DV में जो एक्सपर्टीज हैं, उन एक्सपर्टीज को लोगों को DV की टीम का मेंबर बनाना चाहती है। क्योंकि हुआ क्या है अभी लास्ट उसमें, आपने भी पेपर्स में पढ़ा होगा कि DVV टीम जो थर्ड पार्टी टीम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मुझे वो वर्ड, हाँ, मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, कि वो मैनिपुलेशन किया, और जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ A के लायक भी नहीं थी, उनको A+ मिल गया, A++ मिल गया, राइट। जो कि मतलब अगर आप हम जो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें मोटा-मोटा दिखता है कि साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी भी एग्जाम्पल हमारे नेक के पास में सामने है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली टेक द वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑन दैट, और नेक को ये स्टेट फॉरवर्डली एक्चुअली रिकमेंड किया गया कि अब आप जो DVV में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप ज़्यादा रखने की कोशिश करें, so that there should be at minimum level of manipulation. तो जो एक्सेसर हैं, अब वो डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के, वो अब हमारे ही यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और यहीं से अब ये पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवे, थर्ड पार्टी तो अभी इस तरीके से ऑब्सोलीट नहीं हो सकती। बट ये मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अभी बाइनरी जो एक्रीडेशन है, वो इसी का एक रिजल्ट है। इस इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो गया, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो गया कि भाई हमारा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारा टीकाराम में सब कुछ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इनको हर कॉन्टेक्स्ट में बेटर होना चाहिए। दोनों दैट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट हैपन एक्चुअली। और देखा जाए, अगर मैं बात विजिबिलिटी की करूं, तो टीकाराम की बहुत अच्छी इमेज है जहां तक हमें मालूम है। और इमेज का मतलब है, यहाँ स्टूडेंट भी हैं और रिजल्ट भी आता है। जब हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं, हमारे टीचर अच्छे हैं, राइट, तो हमें ग्रेड B क्यों मिल रहा है? दैट इज द पॉइंट। सो देर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट रीजन इज कि हमारा डेटा या तो हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर है। सही। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन, जो कि बहुत ही मिनिमल है, मैनिपुलेशन भी हो जाता है। वो मैनिपुलेशन बहुत सारी तरीके से होता है।
तो हम लोग उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारी है कि भाई वहाँ बैकएंड से जो है वो डीवीवी टीम का पता कर लेते हैं और वो जो है सब हो जाता है। इनफैक्ट डीवीवी टीम ही उनको बताती है कि साहब मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इस पे आपको इतने मार्क्स दे देंगे हम, और ये सब हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे टीकाराम की हम बात करें तो हम लोग डीवीवी टीम के पीछे नहीं भागते ना। हम कभी ये कोशिश करते हैं कि हमारे कौन सी डीवीवी टीम है हमारी जो इवेलुएट कर रही है हमारी AQR को या SSR को, राइट। क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है भाई, हम तो ऑनेस्ट हैं, हमने जो डेटा सबमिट किया वी हैव टू रिसीव द ग्रेड अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो खैर बहरहाल तो डीवीवी जो है वो पिक्चर में आती है, और हमारा जो, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो भी सबमिट कर रहे हैं वो सब डीवीवी इवेलुएट करेगी, और इवेलुएट करने के बाद में उसको एक डेविएशन रिपोर्ट बनाती है डीवीवी। वो डेविएशन रिपोर्ट का आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारी SSR जब डीवीवी टीम के पास में जाती है, राइट, तो देर इज ए प्रोसेस, यू नो दैट, क्लैरिफिकेशन सॉर्ट फ्रॉम द एशिया, राइट। तो जब क्लैरिफिकेशन के लिए जाहिर है कि 99.9% क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है डीवीवी के लिए, राइट। हम जो भी डेटा सबमिट करते हैं वो बताऊंगा मैं कैसे पड़ती है, जो कि इस डीवीवी से हमने बहुत कुछ सीखा। इतना कुछ सीखा कि अब हमने कोशिश की है कि हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। तो क्लैरिफिकेशन जब देते हैं तो वो क्लैरिफिकेशन से हमें पता लगता है कि साहब अच्छा ये नहीं, हमें ये नहीं, ये देना चाहिए था, इसको डेटा को हमें इस फॉर्मेट में देना था। क्योंकि देखिए डेटा जो है वो डेटा हम प्रिपेयर या कुक तो नहीं कर सकते दुनिया में कोई भी आदमी। हमारे पास अगर मान लीजिए 100 लड़कियां हैं और हमारे पास में 50 प्रोग्राम हैं, तो 50 प्रोग्राम ही रहेंगे। उन प्रोग्राम्स के साथ में हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट। लेकिन हमारे उस प्रोग्राम का जो आउटकम है दैट इज चेंज, राइट। कोर्स आउटकम है, प्रोग्राम आउटकम्स हैं, वो चेंज होंगे, राइट। और वो हर साल चेंज होंगे, जाहिर है। आउटकम तो हमारा प्रोग्राम है, हमारी फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फैकल्टी किस तरीके से उस प्रोग्राम को टीच कर रही है, उसके बेसिस पे ही वो आउटकम्स आएंगे, राइट। तो दो आउटकम जो है उसी आउटकम के बेसिस पे ये डिजाइन किया गया। दिस इज अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म और टेम्पलेट दे डिजाइन इट, राइट। या ठीक है। No, that's your outcome, means they are, those outcomes are the expectations or these are the ideals. I know that. नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है, ये जो हमारे हमारे जो आउट हमारे जो आउटकम्स है मैम, वो आउटकम्स तो हमारे फिक्स है, राइट। दीज आर द कांस्टेंट आउटकम्स। वो एक्सपेक्टेड है, यस। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तभी तो कहते हैं ना, अच्छी फैकल्टी, आप हम रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं, अच्छी फैकल्टी इसलिए करते हैं हम कि जो हमारे पास में प्रोग्राम आउटकम्स हैं, वेदर वी आर वी एबल टू रेप्लिकेट द इंफॉर्मेशन टू यू। भाई आपके यहाँ बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स कराते रहते हैं आप लोग, और जो स्पीकर्स होते हैं, क्या हर एक स्पीकर अच्छा स्पीकर होता है? नहीं। अच्छा स्पीकर वही होता है जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट कर पाए, राइट, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। तो आउटकम भी वही है। मान लीजिए आप इस सेशन में, लड़कियां आपके पास 50 हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट हमने जो कोर्स पढ़ाया, फॉर एग्जांपल हम बीएससी मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बीएससी मैथमेटिक्स में जो हमारे फैकल्टी हैं, वेदर दे आर जस्ट रेप्लिकेटिंग द इंफॉर्मेशन विच वी आर एक्सपेक्टिंग, क्या हमारे वो स्टूडेंट रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। और हम फिर उसके बाद में जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेमिस्टर या हम एनुअल जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे वो टीचिंग के अकॉर्डिंगली हम उनको एक्वायर कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। दिस इज द प्रोग्राम आउटकम्स और द कोर्स आउटकम, राइट। Programs, you know very well that, for example, if you are talking about the BA, right, BA English, for example, so this is the program, right. But inside the BA, we are having so many courses,
तो हर कोर्स का एक अलग आउटकम्स होता है, राइट? तो वो आउटकम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसी आउटकम की बेसिस पे ये टेम्पलेट्स डिजाइंड है। होता क्या है ब्रॉडली, अगर आप इसको एज ए एक सिंगल अम्ब्रेला अगर हम देखें, तो जहां हमसे वो डैक हमसे प्रोग्राम्स मांग रहा है ना, तो प्रोग्राम से फिर ये भी देख रहा है वहां आगे कुछ टेम्पलेट्स में जाकर कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। फिर ये भी पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड इन नेट स्लैट कैट, राइट? तो वो नैक ने डिजाइन ही इस तरीके से किया कि वो फाइनली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स टू लास्ट मैट्रिसेस वो आउटकम अपने डेटा से रिट्रीव कर लेता, तब कर लेता कि वो भाई हमारे यहाँ क्वालिटी क्या है एक्चुअली, राइट? क्वालिटी बता रही है, राइट? एग्जैक्टली। हाउ मेनी अपीयर्ड फॉर एग्जाम्पल, मैं फीडबैक की बात करूं, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो उस पे क्या है कि वो नेक ये पता कर लेता बिकॉज देयर आर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट? तो अगर मान लीजिए हमारे पास में 500 अगर स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट करने के बाद में जो उसका आउटकम है, जो हमारे क्वेश्चनेयर हैं, उससे भी वो पता करेगा। और आइडियली आप भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे जब एसएसआर आप सबमिट करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर टीम विजिट करेगी डीवीवी के बाद में, सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और अब तो एक न्यू मैकेनिज्म आपको भी मालूम हुआ होगा कि अब नैक ने एडवाइस किया है कि आप स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जब आप करेंगे, तो आप एक ओटीपी बेस्ड इनेबल्ड डेटाबेस तैयार करेंगे। जैसे कि कोई लड़का अगर कोई जब उस सर्वे में पार्टिसिपेट करेगा, तो पहले वो अपना मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करेगा। होता क्या है, कुछ लोगों ने क्या काम किया, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेक और फजिंग नंबर्स दिए गए नैक को, वो जब स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे उन्होंने स्टार्ट किया, तो नंबर ही नहीं मिले। तो फिर वो कैसे सेटिस्फेक्शन सर्वे करेंगे? जी, जी मैम जी। हम्म, जी जी जी। यस, एक्सेप्ट कॉल फ्रॉम, यस। जी 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 जी। हम्म, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली।
यही सब चीज़ों को देखते हुए मैम, क्योंकि ऐसा है कि देखिए कोई भी सिस्टम कोई इतना फूल प्रूफ 100% फूल प्रूफ कोई सिस्टम है नहीं, है ना। और जितनी ज़्यादा हमारे सिस्टम की डिपेंडेबिलिटीज होती हैं आइडियली केस में, उसका इतना ही लेक्यूनास होते हैं उस सिस्टम में। ये एक जनरल है डिपेंडेबिलिटी, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को जैसे आपने अभी बताया, यही सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस की हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि स्टूडेंट तो भाई बच्चे होते हैं, वो इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। बताइए, बताइए। एग्जैक्टली। हाँ जी। अच्छा मैम, इसी के साथ में मैं अभी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और एनरोलमेंट नंबर अभी हम जब AQR में हैं, मैम आपको मालूम होगा, एनरोलमेंट इज ऑल्सो दे आर आस्किंग द एनरोलमेंट नंबर। और जिस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, दे आर नॉट कंसिडरिंग एज ए नंबर। स्टूडेंट ही नहीं मानेंगे। एग्जैक्ट। हाँ, नहीं, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यस आई नो दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। लेकिन इसके ऊपर अभी एड ऑन आपको मैं एक चीज़ कर दूंगा है, जो कि मेरे अभी, क्योंकि ऐसा होता है डिस्कशन से यही फायदा होता है कि हर चीज़ देखिए मैं PPT में नहीं रखता। इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो हम ना 2 घंटे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, ये कि मैं कोशिश ये करूँगा जो मैक्सिमम हम लोग अभी इस 2 घंटे के अंदर हम सीख सकते हैं एक दूसरे से, वो हम कर लेंगे। इसके बाद भी आई एम अवेलेबल, इफ़ यू थिंक दैट वी शुड डिस्कस, वी कैन डिस्कस इट। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी अब ट्रिपल एस के बारे में आप बात कहिए, आप लोग ऐश पोर्टल पे डेटा सबमिट करते हैं, राइट। आपको ये भी मालूम होगा कि नैक, नॉट ओनली नैक, ऑल द रैंकिंग्स एंड नैक, they are validating the data from ashpo। तो ऐश पोर्टल के अंदर हम जो डेटा दे रहे हैं, और ऐश पोर्टल में जैसे अभी आपने अर्ज किया, यू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐश पोर्टल में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्टूडेंट एनरोलमेंट, ठीक है। और स्टूडेंट एनरोलमेंट में भी आपको मालूम होगा उसका टेम्पलेट इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा BA 3 कोर्स 3 इयर्स का है, तो वहाँ कोर्स की ड्यूरेशन इनटेक पूछता है, प्रोग्राम में जब वहाँ रजिस्टर करते हैं, उसके बाद में एनरोलमेंट में फर्स्ट ईयर का पूरा एक उनका एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर पूछेगा साहब जनरल में कितने मेल फीमेल हैं टोटल हैं, उसके अंदर भी जनरल कितने हैं, PWD कितने, मुस्लिम माइनॉरिटी कितने, अदर माइनॉरिटी कितने। फिर उसके अंदर भी हम जाएंगे नेक्स्ट में SC ST OBC EWS, राइट। सो इफ वी डू नॉट हैव ए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, तो ऐश पोर्टल में हम वो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एग्जामिनेशन। उसके अंदर भी 3 मैट्रिसेस बना रखे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना, एंड हाउ मेनी गॉट पास्ड, एंड हाउ मेनी गॉट पास्ड विद मोर देन 60%। तो जो आपने ये पॉइंट रेज किया ना, एग्जामिनेशन जो देखिए देखा जाए ना, हमारा जो आउटकम है वो तो स्टूडेंट आउटकम ही है ना। हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारे कॉलेजेस जो बेस्ड हैं, हम लोग जो यहाँ पर सब क्लब्ड हैं, दे आर एक्चुअली मीन्ड फॉर द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का डेटा अगर हमारा ऐश पोर्टल में कंप्लीट नहीं है, और हम AQR में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इट गिव्स द नेगेटिव इमेज एज वेल, बिकॉज DVV ऑल्सो डू सम कमेंट्स ऑन दैट, एंड पीयर टीम भी एक कुछ कमेंट करती है, जो कि एक्सटर्नल कमेंट्स होते हैं, कुछ इंटरनल कमेंट्स भी होते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक। तो जो नेक पीयर टीम के कमेंट्स होते हैं, जो कि क्लब होते हैं हम SSR के मार्क के साथ में, तो वो हमें बहुत इम्पेक्ट करता है। तो खैर एनीवे, तो ऐश पोर्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो ऐश पोर्टल में हमें डेटा जो फिल करके भेजना चाहिए, इट शुड बी वेरी फिल्ड विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी। तो ये हमारा DVV का तो खैर प्रोसेस आपको समझ गए कि भाई जब क्लैरिफिकेशन होगा उसके बाद में DVV टीम एक डेविएशन हमारी रिपोर्ट बनाती है, डेविएशन टीम रिपोर्ट बनाने के बाद ही फिर हमारा नेक पीयर टीम जो विजिट करती है, उसका प्रपोजल फिर वहाँ से फिर इनिशिएट होता है, और वो फिर नेक पीयर टीम विजिट करती है। तो ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, राइट। और ग्रेड हमारा सबको मालूम है,
शीट है कि इतने अगर हमारे पास CGPA इतना होगा तो इतना मिलेगा, इतना होगा तो इतना मिलेगा. दैट्स अ वेरी क्लियर कट पॉइंट, राइट? थैंक यू. So now I would like to open the शेयर कीजिए प्लीज. तो मैं जंप नहीं कर सकता इसमें शेयर में, या सिंगल स्क्रीन नहीं शो कर सकता? पूरी स्क्रीन शेयर कर. जी मैम. जी 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 जी. हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्टली. सो वो फिर क्या होता है हमारा ना, वो कहाँ आएगा? देखिए, वो ये सब चीज़ मैंने क्या कही, जो पूरा एक सिस्टम हमारा जनरेटेड है ना, वो ड्रॉप आउट की इंफॉर्मेशन वो ड्रॉप आउट्स पे चलेगी. जी जी. हम्म. जी जी. एग्जैक्टली. और ड्रॉप तो इससे, हाँ. जी. हम्म, हाँ, वो क्लियर. हाँ, वो मिस ड्रॉप आउट का कोई ऑप्शन एक्चुअली स्पेसिफिकली कुछ है नहीं. लेकिन वो फाइनली होता क्या कि मिनिस्ट्री ना अभी एक, चूंकि ये सिस्टम है, अब आपने एक चीज कॉन्सेप्ट और मालूम होगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वन डेटा वन नेशन का कॉन्सेप्ट अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, राइट? वन डे, ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी रिजॉल्व थ्रू दैट मैकेनिज्म. वन डेटा वन नेशन में क्या है मैम, कि हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं, वेदर इट इज NAC, whether it is the ranking, all the rankings, right, and the ASH portal, all will be merged together in terms of the database. In terms of database, so उसका बेनिफिट हमें ये होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐश पोर्टल में अगर मैं स्टूडेंट इनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, तो अब किसी दूसरे पोर्टल पे मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मांगू. दैट इंफॉर्मेशन बी पुल्ड अप फ्रॉम द सिंगल सोर्स. तो उससे क्या होगा, हम लोग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस पे बहुत लोड है. जो AQR प्रिपेयर करता है, उसके पास में इतना लोड होता है कि वो 2-3 महीने उसको यही समझ क्लब करने में ही लग जाते हैं कि साहब प्रोग्राम, कोर्स प्रोग्राम, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. फिर होता क्या है इन बिटवीन, आपने भी ये रियलाइज किया होगा, फिर दूसरी तरफ से मिनिस्ट्री से कॉल आ जाता है कि राज्यसभा का एक क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन सेपरेटली, राइट? हालांकि अब CU पोर्टल लॉन्च कर दिया है, और मेरे ख्याल से CU पोर्टल पे हैं आप लोग. UGC का एक CU पोर्टल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पोर्टल. ओके ओके, ऑलराइट. तो ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. तो उसमें भी क्या किया है कि वहाँ भी जैसे टीचर की इंफॉर्मेशन है, हमसे टीचर की इंफॉर्मेशन NAC में भी, AQR में भी मांग रहे हैं. टीचर की इंफॉर्मेशन ऐश पोर्टल में भी मांग रहे हैं, और टीचर की इंफॉर्मेशन हमसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पोर्टल में ही मांग रहे हैं. और सबके पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट है. तो आपको मेरा मतलब, एक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई सजेशन, कि जो यहाँ पर डेटा हैंडल करते हैं, उनको टीचर के लिए एक कॉमन मैट्रिसेस बनानी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक टीचर है, उनके 25 या 26 फील्ड हैं. जैसे ऐश पोर्टल पे जो काम कर रहे होंगे, तो 25, हाँ, वेरी गुड. तो उससे आपको ये बेनिफिट होता होगा कि अब टीचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मालूम कर ले, वी विल बी इजिली प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, है ना? तो इसी तरीके से हमें जो मैट्रिसेस खुद अपना इंटरनल यूज के लिए ऐसा डेटाबेस अपना तैयार होना चाहिए कि जो हमारा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसको कवर अप कर सके, राइट? तो खैर बहरहाल, मैं बहुत ही अब जल्दी से ये देख,
हम ये डिस्कस करेंगे मैम। हाँ एग्जैक्टली 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 ओके 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 ऑल राइट। सो अच्छा, आप जो डिस्कस कर रहे हैं, ओके, सो द क्वेश्चंस व्हिच यू आर रेजिंग इज नॉट एक्चुअली गोइंग ऑन। ओके हाँ हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है अभी 15 मिनट में बहुत क्विकली के साथ मैट्रिसेस इसको मैं कवर अप कर देता हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा है कि AQR मेरा ये एक थॉट प्रोसेस था कि आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मतलब रेप्लिकेट कर दूं जो कि हमें AQR प्रिपेयर करने में ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि AQR तो प्रिपेयर करते ही करते हैं, राइट। मैं अपनी AQR भी चाह रहा था कि आपको दिखाऊं जस्ट एज ए मॉडल, राइट। भाई अपना मॉडल के हमने इस फील्ड में ये चीजें दिखाई हैं, बट टाइम के कांस्टेंट की वजह से वो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है कि भी टिल 5 o'clock इट विल बी पॉसिबल। बट यस, मैं आपको जो मैट्रिसेस, जो हमारी मैट्रिसेस हैं, जो आपके पास भी मैट्रिसेस वो होंगी ऑफ कोर्स, राइट। सो हम उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो वो उसका मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए ऐसा है, डेटा सबमिट तो बाद में करेंगे हम, पहले होता है डेटा कलेक्शन, राइट। एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। हम अगर डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे ठीक से और सही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, हम डेटा कभी भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा भी होता है कि हम डेटा कलेक्ट तो कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन हम कुछ डेटा एक्स्ट्रा भी मांगना चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बार क्या किया कि मैं अब जो हम 4 साल बाद SSR सबमिट करेंगे ना, मैंने उसकी प्रिपरेशन इस साल से स्टार्ट की है। वो कैसे की है कि मैं 4 साल के बाद में अगर मैं अपने किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा फॉर एग्जांपल के लिए कि हाउ मेनी वर्कशॉप यू हैव कंडक्टेड फॉर द 4 years, तो डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि स्टाफ जो है वो हर जगह का एक सा एफिशिएंट नहीं होता है और डेटाबेस की इंपॉर्टेंस हर आदमी नहीं समझता है, राइट। और फैकल्टी जो होता है, फैकल्टी हर चीज को भाई उन्हें तो टीचिंग भी करनी है हर चीज, तो वो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और अभी हमारे यहाँ पर एक अच्छा, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है हर जगह, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कि हमारे एक सिंगल क्लिक पे सारे हम जितने भी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, जो भी प्रोग्राम है, वेदर ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट और ऑन एनी टॉपिक, राइट, वी विल गेट इट आफ्टर 4 years। तो मैंने इस बार डेटा कलेक्शन में एक चीज मैंने ऐड की अपने एज ए एक्सपेरिमेंट, कि जो भी मैट्रिसेस नेक ने प्रोवाइड की हमें, उस नेक की मैट्रिसेस के साथ में मैंने एक कॉलम ऐड किया और उसमें लिखा कि प्रोवाइड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करने में बहुत इजी हो गया मेरा, और मैं अपने किसी भी डिपार्टमेंट को 4 साल के बाद मैं परेशान नहीं करूंगा। मेरे पास में ऑलरेडी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, राइट। तो हमें डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। तो इसलिए हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली डेटा कलेक्शन जब हम कर रहे हैं, तो उन मैट्रिसेस को पहले हम एक टीम के साथ में इवेलुएट करें। और दूसरी चीज ये भी है कि हमें इन मैट्रिसेस, जो हमारी 103 मैट्रिसेस हैं, आप भी समझते हैं कि हर मैट्रिक्स, हर सेक्शन डेटा नहीं देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फाइनेंस की बात करूं मैं, राइट, टीचिंग की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर एक टीचिंग का एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, राइट। तो वो हम पूरे टेम्पलेट में जो हमारे पास में कंप्लीट एक नेक्स्ट से डाउनलोड करते हैं, हम उसमें से हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, राइट। और ब्रेक करने के बाद में सबसे पहला हमारा काम होता है कि उन टेम्पलेट्स को ब्रेक करने के बाद डिवाइड करना कि दिस टेम्पलेट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, और उस सेक्शन के पास में हम उसको भेज देते हैं, राइट।
This is how we are distributing it, and it happens with the help of some experts, right? क्योंकि कुछ ऐसी कॉमन मैट्रिसेस भी हैं जिसका डेटा एक एंटिटी नहीं देता है, उसका मल्टीपल एंटिटीज से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक डिपार्टमेंट नहीं देगा, वो हम सारे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई किस कोर्स में कितना सिलेबस रिवीजन हुआ, और सबको गैदर करने के बाद में फिर उसका मैं कंपाइलेशन करूंगा, क्लीन अप करूंगा और उसको फिर डेटा सबमिट करूंगा, राइट? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए हमें कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें नेक हमसे चाहती है एसएसआर के टाइम पर और एक्यूआर में भी, वो हम अभी प्रिपेयर करें और अभी हम प्रोवाइड कर दें, नेक को ही प्रोवाइड कर दें, सो दैट 4 ईयर के बाद में अगर हमें प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है दैट शुड बी स्टेटिक वन, हम उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमसे पूछा एक ये एक्सटेंडेड प्रोफाइल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ क्लोज क्लासरूम्स एंड सेमिनार हॉल्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-23। अब हमारा जो एकेडमिक ईयर है, देखिए आइडियली एकेडमिक ईयर जो है, जो नेक कहता है वो 1 जून टू 31 मई बोल रहा है, ठीक है, बट वो चेंज होता रहता है, राइट? वो डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इस डेटा को टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम और सेमिनार हॉल्स को कलेक्ट करेंगे, तो हमने बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस फ्रॉम द डीवीवी, हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमने टेम्पलेट्स पे काम किया। पहले 15 दिन हमने इसी चीज पे काम किया कि हम इसमें क्या इंफॉर्मेशन ऐड करें सो दैट जो एंटिटी हमें डेटा प्रोवाइड करेगी वो उस चीज को ध्यान रखे। जैसे बहुत छोटी है कि ऑल क्लासरूम यूज फॉर एकेडमिक पर्पसेस आर टू बी कंसिडर्ड एंड जियो टैग्ड फोटोज ऑफ द क्लासरूम टू बी प्रोवाइडेड। तो अब हमें जो जो भी एंटिटी हमें नंबर ऑफ क्लासरूम प्रोवाइड कर रही है, हमने उनको डिफाइन कर दिया कि हमें जो क्लासरूम है जो एकेडमिक पर्पस से हमें यूज कर रहे हैं वही क्लासरूम के नंबर चाहिए हमें। सेकंड, हमने पॉइंट मेंशन किया लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगर हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमने डीवीवी में क्या किया था कि वर्कशॉप और लेबोरेटरीज इंक्लूड कर दी थी। हमें तो मालूम नहीं है कि भाई क्लासरूम क्या, भाई वर्कशॉप एंड लेबोरेटरीज आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द क्लास, राइट? क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन नैक इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड। सो हमने ये इंफॉर्मेशन जो जिससे हम डेटा गैदर कर रहे हैं, हमने स्पेसिफिकली वो नोट हमने हर शीट में लगाया है सो दैट कि इंफॉर्मेशन हमारे पास कम आए। क्योंकि क्या होता है कि जो एक्यूआर की टीम हमारी प्रिपेयर कर रही है ना, वो फिर इन सब चीजों को क्लीन अप नहीं कर सकती, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, हमें एक इसके साथ साथ में हमें एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे जिनसे भी हम डेटा ले रहे हैं वो भी तो अवेयर हो ना। एक ही क्यूआर में अगर हम मांग लेंगे उनसे इंफॉर्मेशन, तो अब जो नेक्स्ट ईयर तक 1 साल तक वो डेटा प्रिपेयर करेगी हमारी वो एंटिटी, हर एक एंटिटी, जब वो हमारी अवेयर हो जाएगी तो वो डेटा फिर इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेगी। उससे हमें 2 बेनिफिट होते हैं। और फिर हमारा तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम पीयर टीम विजिट होती है हमारे यहाँ पर, तो जो हमारा स्टाफ वो हर सेक्शन में होता है, वो दे आर वेल अवेयर अबाउट द टेम्पलेट्स एंड द एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन विद दैट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम नेक पेयर टीम आती है तो ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, और हर आदमी के हाथ पैर फूले हुए होते हैं। ऐसा पीयर टीम आएगी क्या पूछेगा, पीयर टीम आएगी क्या पूछेगा। तो द बेस्ट वे इज जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे हम इस वे से हम सेंसिटाइज करें जो हमारा स्टाफ है। साथ में जब हम डेटा जब कलेक्ट करने के बाद में हम कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स, हमें अपने इंटरनल मैकेनिज्म एक हमें ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कि नेक से एसोसिएट इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम एक आध सेशन 6 महीने में एक सेशन कर लें, सो दैट जब हम नेक पीयर टीम हमारा आएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। किसी से भी कुछ भी पूछे नेक पीयर टीम, आवर एवरी स्टाफ विल बी एबल टू गिव द आंसर फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं हम ऐसा करेंगे तो फिर वो लास्ट में क्या होता है कि हम सही भी होते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ जो होता है ना, वो एवरी स्टाफ हैज इट्स ओन कम्युनिकेशन स्किल, राइट? वो जब नहीं बता पाता तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि जब हम हमारा स्टूडेंट नहीं बता पाता है तो हम ये सोचते हैं कि कुछ गलत तो नहीं दिया है इन्होंने। दिस इज हाउ एक्चुअली वी आर हैंडलिंग इट, राइट? मैं कुछ मैट्रिसेस डिस्कस कर लेता हूँ, सारी मैट्रिसेस तो कवर नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वेयर सिलेबस रिवीजन वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-23, राइट?
So the last actually column which you are able to see it, that is marked with the yellow color, right? We amended this. We amended those points just for the comparability of the every section. इसमें क्या है कि हम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो नैक देता है, आपने भी महसूस किया होगा, वो देता है लिंक ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। नैक सिर्फ इतना देता है, लेकिन उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्या होना है, क्या उसके पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की, विच शुड बी मेंशन्ड एक्चुअली, राइट? फॉर एग्जांपल, हम अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वेयर सिलेबस रिवीजन वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर का मैं बात करूंगा, तो वो उसे क्या चाहिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में? नंबर 1, अप्रूव्ड मिनट्स ऑफ द रिलेवेंट एकेडमिक काउंसिल। क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये होना चाहिए, या बीओएस मीटिंग हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक एजेंडा आइटम रिलेवेंट टू द मैट्रिक, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी लेटर एंडोर्सिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस, यूनिवर्सिटी एंडोर्स कर दे। और थर्ड पॉइंट इज लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच सीबीसीएस और ईसीएस वाज इम्प्लीमेंटेड। These are the points which we have to mention in the supporting documents. If we will not provide that, NAC will not consider that. That's very, I mean, clear cut. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनट्स तो होंगे, नंबर है, मिनट्स तो होंगे ना? नहीं, एनी नहीं मैम, ये बताइए मुझे, आपके यहाँ मिनट मीटिंग्स तो होती हैं? राइट, वो मीटिंग होती है, राइट? कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, यही तो देखिए, यही हमने सीखा। हाँ, वी कैन आस्क फॉर द कॉपीज ऑफ द मिनट्स। हम इसका नैक के रेफरेंस से हम उन्हें मांगना चाहिए। मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा मैम, आई विल शेयर द एसओपी ऑफ द नैक, ठीक है? उस एसओपी के बिहाफ पर आप कहीं से भी मिनट्स मांग लीजिए। आपने जो भी यहाँ पर आईक्यूसी आप हैंडल कर रही हैं, आप कर रही हैं, तो एक एसओपी है, कॉलेजेस की अलग है, और ठीक है, मेरे ख्याल से आपके आपके पास वो एसओपी शायद है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो एक तो गाइडलाइन है हमारे पास में, गाइडलाइन के साथ साथ में एक एसओपी होती है, और एसओपी का मतलब ही ये है जो मैम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो मिनट्स तो हम किसी से भी मांगे, जो हमारी जो अथॉरिटी या हायर अथॉरिटीज हैं, जो मिनट्स आपके बन रहे हैं उसके मिनट्स की कॉपी आपको लेनी है, और देन यू हैव टू अपलोड इट अकॉर्डिंग टू दैट। मैं इसका एक एग्जाम्पल, मैं इसको डिस्कस कर लूँ खाली, और इसके साथ में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो वो एप्लीकेबल होगा हर मैट्रिसेस के ऊपर, राइट? अच्छा, मैंने इसमें ये कहा। जी मैम। ठीक है जी। नहीं नहीं, आपको सबको एक 10 कोर्सेज, जो आपके यहाँ कोर्सेज रन हो रहा है, उस कोर्सेज में अगर रिवीजन हो रहा है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। नहीं,
हम्म, जी। नहीं, वो तो अप्रूवल, उसका जो अप्रूव्ड हुआ होता है ना, कोई भी जब हमारा कोर्स या प्रोग्राम जब इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं जिस प्रोग्राम की, तो वो उसका एक अप्रूव करती है हायर अथॉरिटी। ठीक है, जैसे जो यूनिवर्सिटी है आपकी, जो भी मेन एपेक्स यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम अप्रूव्ड होता है तो वाइस चांसलर उसको अप्रूव करते हैं। वो एक प्रोसेस है, बीयूएस में पास होगा, राइट, फिर एसी में पास होगा, है ना, फिर ईसी में पास होगा, एंड आफ्टर पासिंग द वो वाइस चांसलर अप्रूव करेगा, राइट। तो वाइस चांसलर का जो अप्रूवल लेटर है वो हमें, वी हैव टू कलेक्ट दैट एंड वी हैव टू अपलोड दैट लेटर। आज नहीं करोगे तो फिर वो कंसीडर नहीं होगा, फिर वो एसएसआर में जो हमारा डेविएशन रिपोर्ट है उस ड्यूरेशन के प्रोसेस में वो मांगेंगे, 100% मांगेंगे, एंड वी हैव टू प्रोवाइड दैट। अदरवाइज एक बार बताइए, अगर मैं ये कल को कहने लगूँ कि साहब मेरा टीका राम में एमएससी क्वांटम एआई में हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने, फॉर एग्जाम्पल, तो इज इट द ऑथेंटिक? नो। हमारा प्रोग्राम जब तक ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, जब तक हमारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, हमारा जो एपेक्स अथॉरिटी है उसको अप्रूव नहीं करेगी। दिस इज वेरी सिंपल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आपको ये करना है कि जहां पर जिस ईयर में आपका सारे कोर्सेज हैं, जैसे जहां सिलेबस रिवीजन होगा उसमें इंफॉर्मेशन अलग है और टोटल प्रोग्राम अलग है। जब अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको उस इस टेम्पलेट में आपको डालना ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज, मैं इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ओके, नाउ सी द स्क्रीन। मैंने अभी टेम्पलेट पे डिस्कस किया था कि किस किस प्रोग्राम में हमारा रिवीजन हुआ है, राइट। देखिए, मेरा AQR जो है वो AQR ये है। देखिए, इसको देख लीजिएगा बस। अगर ये समझ में आ जाएगा तो द रिमेनिंग टेम्पलेट्स विल बी वेरी क्लियर, राइट। हाँ, ये मैंने हमारा AQR है जिसको मैंने कन्वर्ट किया है अपना PDF में, राइट। तो मेरा नंबर ऑफ प्रोग्राम वेयर सिलेबस रिवीजन वाज कैरीड आउट ड्यूरिंग द ईयर, मेरे 30 प्रोग्राम्स हैं जहां पर सिलेबस रिवीजन हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखेंगे अपलोड द डेटा टेम्पलेट, सो व्यू फाइल, तो डेटा टेम्पलेट तो मैंने जैसे भी आपको टेम्पलेट अभी डिस्कस किया एक्सेल में, वो डेटा टेम्पलेट तो एज इट इज है, राइट। वो मैंने डिलीट कर दिया, लिंक ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। लेकिन मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो नीचे है मेंशन, अपलोड रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखिए मैंने क्या किया मेंशन, मैंने मेंशन ये किया, फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोग्राम नेम जहां मेरा MA इकोनॉमिक्स के अंदर रिवीजन हुआ, हमारे यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स में जब रिवीजन हुआ तो हमने इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखिए कैसे डाला। आर यू एबल टू सी दैट? So these are the minutes of the ordinary meeting of the board of studies held on this. So these are the following members was there, and these are the agenda items. Ma'am, can you please see that? So these are the minutes we have uploaded in the form of supporting document. क्योंकि हमने अपने टेम्पलेट में ये बताया कि हमारा प्रोग्राम नेम ये है, प्रोग्राम कोड, दिस इज द प्रोग्राम कोड, एंड दिस आर द सिलेबस रिवीजन हैपेंड। लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या अटैच किया, हमने मिनट्स मेंशन किए, देखिए, और यहाँ नीचे चेयरमैन के सिग्नेचर हैं। So now this document becomes more authentic, and this
document has each and every information what are the syllabus revision happened in MA economics, right? So this information we did not ask in the last few years. Reason behind is we were not aware about it, but when we learned from the DVV, we understand that what are the supporting documents, we understand the SOPs, right? In SOPs everything is mentioned, everything is mentioned. If you go on, we will go on through it. SOPs defines each and every metric definition actually. So we have to, when we are preparing the AQR or SSR, we have to consider those SOPs as well. And those SOPs, after considering those SOPs, we have to mention those points at the time of data collection. अगर हम डेटा कलेक्शन के टाइम पे हमने वो SOPs वाले पॉइंट्स अगर नहीं डाले, तो आपको फिर क्या होगा, एक बार डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर डीवी वाले पूछेंगे, फिर आपको फिर दोबारा डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, तो इट विल बी ए टीडियस टास्क। तो एक सिंपल मतलब एक जो प्रोसेस है वो ये है कि हम डेटा कलेक्शन ही तब करेंगे, तब हम SOPs को बहुत अच्छी तरह रिक्वायरमेंट एक्चुअली नेक की क्या है वो समझ लेंगे। वही तो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं भाई। हम पहले क्या रिक्वायरमेंट है वही तो समझते हैं ना। हम जैसे घर में कोई सामान लेके आते हैं तो हम पहले समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसी नेक हमसे क्या चाहता है, तो पहले हमको वो समझना चाहिए ना बिफोर कलेक्टिंग द डेटा। अब डेटा खाली डेटा डेटा अगर हम बात करते रहेंगे ना तो वो कोई प्रॉब्लम, फिर तो आगे फिर हम उसके अंदर फंसते चले जाएंगे। हम अगर डेटा कलेक्शन ही अच्छे तरीके से SOP के अकॉर्डिंगली करेंगे, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सेशन, तो हम बहुत इजीली SSR और AQR हम सबमिट कर पाएंगे, राइट? सिमिलरली आई एज आई शोन यू, तो रिमेनिंग जितने भी मेरी मैट्रिसेस हैं इसी तरीके से सबके पॉइंट्स हैं। मैं आप लोगों को ये जो टेम्पलेट हैं वो शेयर कर दूंगा, मैम को कर दूंगा शेयर, वो आप एक बार गॉन थ्रू कर लीजिए कि किस मैट्रिसेस में क्या SOP कहती है। आई वी एक्चुअली गैदर फ्रॉम द SOP एंड पुट इट इन द टेम्पलेट्स एंड वी कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम देयर। वो इतना स्मूथ हो गया है, अब इतना स्मूथ हो गया कि हमारा स्टाफ भी बहुत समझ गया है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कट। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि DVV की तरफ से हमसे हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो तो ऑफकोर्स वो तो DVV है, कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन हमने जो ये मैट्रिक्स अभी आपको दिखाई थी, आप अभी मैंने एक आपको उसमें एक शीट दिखाई थी ना, या दिस वन। लास्ट ईयर हमने SSR में हमसे एक मिस्टेक क्या हुआ था, मिस्टेक नहीं कहेंगे वो, चूंकि मतलब एक अवेयर नहीं थे हम, कि हमने सिर्फ और सिर्फ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिंक ही दिए थे। तो होता क्या है मैम कि जब DVV किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती है तो खाली ऑन द बेसिस ऑफ लिंक ही डिड नॉट अवेयर अबाउट इट। जैसे MA इकोनॉमिक्स में हमारा क्या रिवीजन हुआ, अगर हम खाली लिंक दे देंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा वो कौन सा डॉक्यूमेंट इसको रिव्यू करना है। हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंसेस हम दे रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमने प्रोग्राम नेम खुद ऐड किया, सो दैट कि हम इस डॉक्यूमेंट को, आप भी जैसे देख पा रहे होंगे, इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट का एविडेंस किससे रिलेटेड है, राइट? भाई MA इकोनॉमिक्स से जो जो रिवीजन हुआ आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। PG डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस, इस पे क्लिक करेंगे सब मिल जाएगा। सो द इंफॉर्मेशन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का कोई हमारे पास में ना नेक की तरफ SOP में कोई टेम्पलेट है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो मतलब विजडम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जनरेट करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी आर डूइंग इट। तो लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो फीडबैक के बारे में करना चाह रहा हूँ। तो फीडबैक के बारे में डिस्कस करें मैं, है ना? तो फीडबैक देखिए, फीडबैक देर आर सो मेनी फीडबैक्स फॉर्म्स आर देयर, लेकिन इसमें मैं जो SSS है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है, उसके गूगल फॉर्म के बारे में जो फील्ड्स होने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज
स्टूडेंट फीडबैक की अगर मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग दो तरीके के फीडबैक होते हैं स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। उसके भी अपने एक फील्ड्स हैं, राइट? वो मैं आपको शेयर कर लूंगा जो फील्ड्स हैं, नेक की तरफ से क्या रिकॉग्नाइज फील्ड्स हैं, अप्रूव फील्ड्स हैं। लेकिन ट्रिपल एस में प्रॉब्लम यह है कि हमें यही नहीं पता पड़ता है कि हम उस ट्रिपल एस में क्या फील्ड्स डालें गूगल फॉर्म्स में, राइट? तो स्क्रीन, हाँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सेल एक काम करूंगा मैम, मैं आप प्लीज प्रोवाइड मी द ईमेल आईडी। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एयर। गूगल फॉर्म डिजाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तो वो तो हो जाएगा। बस क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस, ठीक है? उसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकती हैं, मोबाइल नंबर, अगर आप चाहें तो। मोबाइल नंबर मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं जो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मोबाइल नंबर का ना वो नैक जो है वो मोबाइल नंबर वो जैसे आपको प्रॉब्लम बता रही हैं, हम अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे कि मोबाइल नंबर OTP के थ्रू ऑथेंटिकेट हो, सो दैट द मैक्सिमम नंबर शुड बी ऑथेंटिक वन, राइट? इसके अलावा सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आई विल शेयर इट विद मैम, एंड मैम विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। So, and if anybody has any questions, please, I mean, you can ask. SSR, exactly. मैम जो मैंने एक कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड की थी लास्ट टाइम पे, तो जी मैम, ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। क्वेश्चन ये है कि पिछले 3 साल से AQAR इट इज जस्ट रेप्लिका ऑफ द प्रीवियस SSR। तो अब जो आने वाली SSR होगी, will it be the same as the previous one, or it will be different, and in what way? और अभी पिछली SSR जो 19 में हम लोगों का हुआ था, तो उसमें 5 साल का डेटा गया था। अब क्योंकि हर साल हम AQAR उसी फॉर्मेट पे भर रहे हैं, which I think is easier than doing the whole thing for 5 years. How is the SSR going to be different? आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रूली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सिमिलर क्वेश्चंस। और जो हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, क्योंकि कुछ नेक के लोग भी थे उसमें, कुछ मेंबर्स भी थे, तो उनसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि साहब अभी हम तो अभी इस तरीके से अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन बट यस देयर माइट बी वन केस। पहला केस ये है कि हो सकता है कि SSR आगे जब बाइनरी एक्रेडिशन हो जाएगा तो हम SSR फिल ही ना कराएं। जो 4 साल हम AQR या 5 साल हम AQR फिल कराते हैं उसको ही डेटा क्लब करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है जैसे आपने खुद कहा कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं है, सब न्यूज़पेपर और लेडीज बस उन्होंने फाइल कर दी, बस 1 ईयर कर दिया अभी। एग्जैक्टली किसी न्यूज़पेपर कुछ भी होता नहीं ऐसा। कहते हैं लोग उसको मान लेते हैं, ये तो सब rumor है। तो ये जो क्वेश्चन है कि हमारा SSR फ्रेम लास्ट में मतलब सिमिलर होगा नहीं होगा, उसके ऊपर तो ये कि हो सकता है कि वो क्लब करके वो हमसे मांगे ही ना, राइट? दूसरा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है मैम कि जब हम बाइनरी एक्रेडिशन हो जाएगा तो फिर अब होगा क्या। बाइनरी एक्रेडिशन के बारे में आपको मैं बहुत ब्रीफ बता देता हूँ। बाइनरी एक्रेडिशन मीन्स जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, हमें जो भी ग्रेड मिला है, अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है और हमारे यहाँ का जो हिंदी डिपार्टमेंट है दोनों सेम ग्रेड है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसी को A ग्रेड मिला फॉर एग्जांपल, तो उसके यहाँ पर जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है या बॉटनी डिपार्टमेंट है या जोलॉजी डिपार्टमेंट है,
क्या हमारे तीनों डिपार्टमेंट सेम लेवल के हैं? नहीं। नैक ने यही सोचा, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ स्टूडेंट जो होता है, वो स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो ये सोचता है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो ठीक है, ये है NIRF में, इसको ग्रेड ये मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या बॉटनी डिपार्टमेंट वहाँ का अच्छा है या नहीं। ये क्वेश्चंस और जेन्युइन भी है। आपने भी सुना होगा किसी यूनिवर्सिटी में कि साहब वहाँ का वो डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, राइट। इन सबको जाहिर है गवर्नमेंट के पास में फीडबैक तो पहुँचते ही है, और बात भी ठीक भी है, ये पॉइंट वाजिब है कि एक यूनिवर्सिटी को अगर एक ग्रेड मिल जाता है तो उसके सारे डिपार्टमेंट सेम स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं। तो नैक ने क्या किया कि बाइनरी एक्रेडिशन मींस नाउ एट फैकल्टी लेवल इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, राइट। या तो किसी एक फैकल्टी को एक्रेडिटेड सेपरेटली करेंगे या हर डिपार्टमेंट को एक्रेडिट करेंगे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, नंबर वन। तो ये जो SSR का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इंफॉर्मेशन मुझे वहाँ मिली, कि ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इट विल बी वैनिश्ड आउट। बाइनरी एक्रेडिशन का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, वो तो लोअर लेवल पर आ रहा है, अब तो हायर लेवल पर चला है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मान लीजिए हिंदी अगर मेरा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको जो हमारा सप्लीमेंट कर रहा है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मेरे पास में अगर 50 फैकल्टी हैं, 50 फैकल्टी में 5 फैकल्टी तो कोई काम ही नहीं करते, 45 फैकल्टी में से 20 फैकल्टी मिडिल लेवल का काम करते हैं, और उसमें से भी बचे हुए में 2 फैकल्टी या 3 फैकल्टी टॉप मोस्ट काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं। तो वो जितने 45 फैकल्टी मेरा पेपर पब्लिश करते हैं, पता लगा मेरे 5 ही वो जो फैकल्टी हैं वो इतने पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है आज की डेट में, वो 5 फैकल्टी ने पूरी यूनिवर्सिटी का लोड संभाल रखा है। देखा भी होगा आपने कि कुछ कॉलेजेस में फैकल्टी दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कुछ नहीं करते हैं। तो होता क्या है, इस अभी जो मैकेनिज्म है हमारा नैक का, उसमें क्या होता है कि जो अच्छे फैकल्टी हैं वो उनको सबसे सप्लीमेंट कर देते हैं, कि पता लगा कि आपके पूरे कॉलेजेस के अंदर पब्लिश हमारे पेपर 50 हो गए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कितने लोगों ने पब्लिश किए, दैट इज ए क्वेश्चन। इसीलिए वो लोअर लेवल पा रहे हैं कि साहब जब डिपार्टमेंट लेवल पर एग्रेडेशन हमारा होगा तो वहां ये पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट ने इतने पेपर पब्लिश किए। बिल्कुल बिल्कुल, बाइनरी एग्रेडेशन का मैम यही मतलब है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कॉलेज लेवल में भी डिपार्टमेंट लेवल पर होगा या फुल्ली मतलब एक फैकल्टी लेवल पर होगा, ये डिपेंड करता है बस। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बाइनरी एक्रेडिशन में अब एक इंपॉर्टेंट ये भी होगा, अभी हो क्या रहा था जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो DVV ने जो रोल प्ले किया है वो उसने बहुत इमेज नैक की इमेज को मतलब धक्का लगाया है। तो उसको भी गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि उसको बाईपास करें। और अब हम क्या करेंगे, किसी किसी कॉलेजेस को नोएडा में देखा होगा आपने A++ मिल गया, राइट। अब दो ही चीजें होंगी, एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड, दैट्स इट, ब्लैक एंड व्हाइट। इफ एक्रेडिटेड दैट्स फाइन। क्वालिटी का पता किससे चलेगा, हमारा क्वालिटी का पता चलेगा जो हमारा एक्रेडिटेड अगर कॉलेज लेवल पर है या फैकल्टी लेवल पर है या डिपार्टमेंट लेवल पर, नंबर एक। नंबर टू, स्टूडेंट, वो नंबरिंग टू। लेकिन यहाँ लोगों में कंफ्यूजन है, पीयर टीम नहीं आएगी, नहीं, ऐसा कुछ लेते हैं ना इजी रास्ता, अब बाद में कुछ पढ़े पढ़े तो काम वो इसीलिए वही लोग ला रहे हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। नहीं वो है ही नहीं। नहीं, इसके बारे में मैम अभी कोई क्लियर कट वैसे इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब भैया कुछ जगह पे आप ये देखिए, पीयर टीम को बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रुकाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेट पहुंचते हैं उनके पास में। तो वो पीयर टीम, जाहिर है कि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, है ना। कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो पीयर टीम क्या होता है, जहाँ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज में सुना कि साहब पता लगा किसी लोगों ने, मैंने ये भी सुना है, मतलब मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि लोगों को पीयर टीम को कार कार तक गिफ्ट किए हैं। मैंने जो सुना एंड मेरी इंफॉर्मेशन मतलब जहां तक है। हाँ मैम, एक बार बताइए, अगर अगर किसी कॉलेज को A++ मिल जाए ना, तो आप समझते हैं उसको क्या मिलेगा। उसको फाइनेंशियल इतनी ज्यादा ग्रांट मिलती है कि वो
आप 10,000 कार खरीद सकते हैं। नहीं, जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। इसीलिए इसीलिए मैं इसलिए जो ये सेशन है ना मैम, सेशन मीनिंगफुल, जो मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो डिस्कस किया अभी, वो इसीलिए किया कि मेरा AQR जितना अच्छा प्रिपेयर होके जाएगा, जितना अच्छा डेटा जाएगा, देन योर ग्रेड विल बी हायर। जो एक्रेडिशन में, जो आपको एक्रेडिशन नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर होगा, आपका जो फाइनली ग्रेड होगा, आपका मान लीजिए B से B++ और A आ गया, मैं तो बात करता हूँ A++ की बात कीजिए अब आप। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पे सही मायनों में हमारे जो लोग थे, सभी लोग इंडिया में, वो अवेयर नहीं थे इसके बारे में। अब काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, हम डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम इस बार हम A++ की बात करें मैम, जिसको B अगर आया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो डेटा के बारे में देखिए, डेटा प्रेजेंट करना भी एक स्किल है हमारे पास में। तो सर रेखा दीदी ये पूछना चाहती है, जो लेवल्स हैं 5, तो जैसे न्यूज़पेपर में था जो 5th लेवल होगा, तो जो रिसर्च मतलब 3 उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की हैं, हाँ जी, ग्लोबल एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर। तो दीदी का पूछना वही था कि 5 लेवल पर कैसे वो डिफाइन करेंगे। ऐसा 1 to, इसमें क्या है कि अभी जो बाइनरी एक्रेडिटेड होगा मैम, वो 1 to 4 होगा। जब हम ग्लोबल एक्सीलेंस की बात करेंगे, उसमें 5th पॉइंट होगा। 5th पॉइंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जब हम अचीव करेंगे, तो हम उसको फिर हम ग्लोबल सेंटर फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल IIT है हमारे, तो IIT इसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स ऑलरेडी वो उनके स्ट्रीमलाइंड हैं कि वो ऑलरेडी ऊपर जाते हैं रैंकिंग में भी, आपने देखा होगा, है ना। वहाँ के पब्लिशर अलग है, पेटेंट्स अलग हैं। तो पेटेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेटेंट्स हैं, अगर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के 50 पेटेंट्स जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं 500 पेटेंट्स, तो जाहिर है कि वो दे विल गॉट मोर मार्क्स ऑन दैट स्पेसिफिक मैट्रिसेस, राइट। सो इस तरीके से धीरे 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 करके वो ज्यादा मार्क्स लाएंगे, और वो फिर वो सेंटर फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस के अंदर लाई करेंगे। वो उसमें कौन से पैरामीटर होंगे मैम, अभी नेक ने अभी व्हाइट पेपर्स के अंदर भी डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट और दोज पैरामीटर्स, अभी सिर्फ मोटा मोटा एक बताया। राइट मैम, दैट्स व्हाट एक्चुअली NAC एक्चुअली रिमूविंग दीज कॉन्सेप्ट, ABCD, A++, B++, they are going to remove that. Yes. If see 1, 2, 3, 4 means that if we got, for example, 3, we will be accredited. If we will not be not accredited. This is a big problem. So it is now going to be grim situation. Yes. Accredited or not accredited. हाँ, वो मैम ऐसा है कि देखिए, जब अभी सिचुएशन में जैसे SSR है हमारा, SSR में एक डिफाइन कर रखा है ना कि 3.25 to 3.35 हमें ये ग्रेड मिलेगा। इसी तरीके से मार्किंग तो इसी तरीके से होगी। अगर आप मार्किंग 3 से बिलो लाएंगे, तो अब आपको B भी नहीं मिलेगा, आपको फिर आप आएगा नॉट एक्रेडिटेड। अगर आपको 3+ अगर लेकर आएंगे, मार्क्स 4 वाला भी सेम स्टैंडर्ड पे लाई करेगा, 3 वाला भी 3.1, 3.2, 3.3, एवरीबडी फ्रॉम 3 to 4 विल बी ऑन द सेम पेज। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये बाइनरी है क्या, तो 0 या 1? 0 या 1 बाइनरी। उससे बहुत वो हो रहा है ना मैम, A++ पता लगा कि हमें वो मतलब वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज, आई मीन वी कैन डिस्कस इट। मेरे पास सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था कि लैब को हम क्लासरूम में काउंट नहीं करेंगे, पर लैब का तो अपना अलग एक होगा कि जहां हमें लैब्स रखनी पड़ेंगी। जी, मतलब उसका हमें वेटेज तो मिलेगा लैब्स का, जो हमारे यहाँ ओनली फॉर 5 मिनट्स। ब्रिज दीदी 5 मिनट में बस हम मिमेंटो दे रहे हैं। गैस यहाँ पर है, बस हम मिमेंटो दे दें बस।
अच्छा, एक पॉइंट और जो मुझे लगता है कि एक शेयर करना चाहता हूं मैं, जो ये मैंने अभी आपको एक लिंक मेंशन किए ना, लिंक्स, आप लोग लिंक कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं मैम? आप जी, आप कैसे, मतलब डू यू हैव योर ओन सर्वर और डू यू आर यूजिंग समथिंग एल्स? We are using Wi-Fi from Jio. नहीं नहीं नहीं। तो हम बना लेंगे। मैम वो प्रॉब्लम होगी मैम आपको आगे, वो इसलिए प्रॉब्लम होगी, अगर आप वेबसाइट की लिंक आज डालेंगी तो कल को वो लिंक चेंज हो जाएंगे, उसका कंटेंट चेंज होगा, मानेंगे इस बात को? मान लीजिए मैं गया किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के होम पेज पर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है, आज आपने AQR के अंदर शेयर कर दिया आपने वो इन्फॉर्मेशन, कल को 1 साल के बाद में आपने वो पेज चेंज कर दिया, राइट? तो वो जब SSR में आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो गई तो पहली वाली है, लेकिन वो जब वो DVV वाले उसको क्लिक करेंगे वो पहली वाली मिलेगी नहीं, देन दिस इज बिग प्रॉब्लम। तो आपके यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ AMU के अंदर ये मैकेनिज्म है कि जो हम अपने लिंक अपने क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अपनी ही वेबसाइट पे, उसका लिंक जनरेट हो जाता है, जो कि API देख रहे हैं आप, .API समथिंग करके आ रहा है, ये AMU का लिंक नहीं है, वेबसाइट नहीं है, amu.ac.in करके नहीं है, URL बनाएंगे, वरना तो इन्फॉर्मेशन मैम आज कुछ और है कल कुछ और। ये मैम मैं इसलिए मैं मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन ये 4 साल के बाद में आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगी कि आप एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं दे पाएंगे आप। बिल्कुल सही। ठीक है मैम, थैंक यू। Thank you so much. I'm, sir, very, very thankful to you that you have given all the information. Though we feel tired because the teachers, they are coming since morning from 10. But sir, this is a very, very significant and important information which we are getting, just like the last one, which you told that only the website link, it is not sufficient. We have to make the URL of them. And sir, really, because this is the practical session, I should say, because we are listening about the different criterias, but this is the very, very wanted session, needed session. And sir, I'm very thankful to you. And I request Principal Ma'am to give the memento to sir. Thank you so much. Ma'am, you live. बहुत बहुत शुक्रिया। Recording stop.